So I hope you are safe and you are doing well in this pandemic situation. At the outset, I just wish to extend my heartfelt thanks to Team NHRDC Nagpur, and my special thanks goes to Dr. Preeti Dharmik ma'am for giving me an opportunity to put forward my views on the topic as you can read on your screens. Tips to create amazingly professional PowerPoint presentations. So for first 90 minutes, we'll be having discussions on this particular topic. I'm going to engage a couple of sessions today. So first topic will be focusing on, I'm just trying to share some guidelines or some tips to create amazingly professional PowerPoint presentations. So how to give facelift to your PowerPoint presentations, and we'll be focusing more on how to infuse visual appeal in your PowerPoint presentations. And in the next session, we'll be dealing with some ICT tools and all. So as far as my experience goes, generally participants want me to deliver my talk in a combination of two languages, Hindi and English. So in this particular workshop as well, I'll try to use a combination of two languages because what I believe understanding is more important. So just to Voice make the things more easier, ma'am, any problem? voice is breaking. Moment. Is it clear now? It's Yes, clear, sir. Is it clear now? Yes, sir, it is clear. Yes. So hereafter, I will be using a combination of two languages, Hindi and English. So we are all faculties, and I'm just going through the list of participants who are attending this particular workshop. So what I realize, one peculiar thing amongst the participants, most of us have already done doctorate. So, and we all are attending refresher course. So obviously, it's a simple meaning that we all are senior faculties. So as a academician, we have spent quite a long time in academics, and we are presenting our topics in daily classroom settings, you can say, or as a resource person, we have been delivering our talks in some workshops or some conferences and all. We have been presenting our papers using PowerPoint presentations in many conferences. We already done PhD, and even on that particular platform, we have presented our research topic during our pre-submission viva or final viva. So there are several opportunities wherein we are supposed to make PowerPoint presentations and we're supposed to deliver it. So we have been preparing PowerPoint presentation for quite a long time. पर आपको शायद एक बात आपने नोटिस की होगी कि हमने शायद अभी तक कोई सिस्टमैटिक ट्रेनिंग शायद ही लिया होगा कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते कैसे हैं। हम लोगों को पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना कैसे आया? ऑब्वियसली किसी एक दिन कुछ काम अड़ गया कि जिस वक्त पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन करना कंपलसरी था, या फिर ऑडियंस की डिमांड थी, या ऑर्गेनाइजर्स कह रहे थे, और उस दिन हमने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जिंदगी में पहली बार बनाया। और ऐसा भी कोई सिस्टमैटिक फॉर्मल ट्रेनिंग ना लेते हुए हमने वो बनाया, और ओवर द पीरियड हम लोग बनाते आ रहे हैं। कोई डाउट नहीं, हम लोगों को सबको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है। एमएस ऑफिस का जो पैकेज है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का, वो हम लोग यूज करते आ रहे हैं। शायद वर्जन्स हमारे पास अलग अलग होंगे, पर हम लोग ये यूज करते आ रहे हैं। तो मैं आज के सेशन में वो टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ कि वो कैसे बनाते हैं, वो तो हम सब बना ही रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ कि उसको विजुअली अपीलिंग कैसे कर सकते हैं, उसको फेसलिप कैसे दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में न जाते हुए मैं कुछ गाइडलाइंस शेयर करने की कोशिश करूंगा आज के 90 मिनट के सेशन में, कि जिससे अभी जैसे है हमारे प्रेजेंटेशंस 90 मिनट के बाद जैसे मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, तो आपके प्रेजेंटेशन जब आप बनाओगे तो शायद थोड़े से विजुअली बेटर बन जाए। तो वो कोशिश रहेगी, कुछ गाइडलाइंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रहा हूं मैं, और प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक कैप्शन के साथ कर रहा हूं। प्रीति मैम, Yes, sir.
मॅडम हे अनोटेशन ऑन झाल्यामुळे हम्म. हँग झालेलं दिसतंय सिस्टम. सर एकदा हे पीपीटी अनोटेशन ऑफ करता येतील? सर माझ्याकडनं काही सेटिंग्स नाही केले आहेत मी. हा येस अनोटेशन सर, एकदा पीपीटी बंद अनोटेशन करून ऑफ करून. येस शेअरिंग स्टॉप करून परत शेअर करा सर. ओके. ओके येस मॅडम विजिबल आहे आता? येस सर, इट इज विजिबल. Okay, we'll proceed now. So, as you can refer to this particular caption, just to start our presentation with, people don't pay attention to boring things, and why should they? कि लोगों को बोरिंग चीजें देखना पसंद नहीं होता है, और यही चीज मुझे लगता है प्रेजेंटेशन के बारे में लागू होती है कि किसी को भी बोरिंग सी स्लाइड्स, बोरिंग से पॉइंट प्रेजेंटेशन देखना अच्छा नहीं लगता है। भले कंटेंट क्यों ना अच्छे हो, पर वो अगर बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किए जाए तो फिर ऑब्वियसली वो लेक्चर का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आज के 90 मिनट के सेशन का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि क्या बात होगी। तो ऑब्वियसली इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, ये थीम है हमारी आज के 90 मिनट के सेशन के लिए। गाइडलाइंस में जाने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ पैकेज अक्रॉस द ग्लोब। ये दुनिया में जितने भी लोग पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, उसका कुछ स्टैटिस्टिक्स, उससे रिलेटेड कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नंबर्स थोड़े पुराने हैं, 2011-2012 में ये आईबीएम ने रिलीज किए थे उसको ऑफिशियली। पर जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया कि हाउ वाइड इज द यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैकेज इज, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि लगभग 500 मिलियन, यानी हमारी भाषा में 50 करोड़ लोग दुनिया में पावरपॉइंट का पैकेज यूज करते हैं। और ये 10 साल पहले का डेटा है, तो आप इसको 2 या 3 गुना और मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये जो डेटा है, ये ऑफिशियल लाइसेंसेस वर्जन जो बेचे गए हैं उसका डेटा है, और आपको मालूम है पायरेटेड भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा गहरा है, 50 करोड़ ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, पर ये मुझे तो लगता है कम से कम 2 से 3 गुना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। बात करते हैं प्रेजेंटेशंस की। एक दिन में 24 घंटे में दुनिया में 30 मिलियन प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं। 30 मिलियन हमारी भाषा में 3 करोड़ बन जाते हैं। एक दिन में 3 करोड़ प्रेजेंटेशंस दुनिया में किसी न किसी कोने में होते हैं। इसको अगर फिल्टर आउट कर लेते हैं, मेरे पास 1 आवर का, 1 मिनट का, 1 सेकंड का ये पूरा डेटा है, पर मैं फिल्टर करके सीधा आ रहा हूँ 1 सेकंड पे। 1 सेकंड पे अगर फिल्टर आउट करते हैं तो ये होते हैं 350 प्रेजेंटेशंस दुनिया में। अभी मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके सामने पॉपअप प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, इसी मोमेंट में मेरे साथ दुनिया में 350 और लोग कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड यूसेज है पावर पॉइंट के पैकेज का और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। और मुझे तो लगता है कोविड की सिचुएशन में जब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, खास करके टीचिंग लर्निंग, तो मुझे लगता है ये आंकड़ा और ज्यादा सब्सटेंशियली बढ़ गया होगा। पावर पॉइंट ये एक प्रेजेंटेशन का पैकेज है, ये हम सबको मालूम है, पर ये इकलौता पैकेज नहीं है दुनिया में। पर ये एक यूबिक्विटस पैकेज तो जरूर है। यूबिक्विटस का मतलब है मोस्ट पॉपुलर, कि जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। इसमें और बहुत सारे पैकेजेस है, जैसे आपको गूगल स्लाइड्स तो मालूम होगा, गूगल ड्राइव में भी फंक्शंस है, उसके साथ साथ कैनवा है, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग पैकेजेस है। फ्लैश के भी प्रेजेंटेशंस होते हैं, पर हमने रेयरली इनके बारे में सुना है या फिर यूज किया होगा। और जहां तक प्रेजेंटेशन की बात आती है, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है यानी एमएस ऑफिस का पावरपॉइंट पैकेज यूज करना है, ये मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है और यही यूज होते आ रहा है। और उसका स्वाभाविक सा कारण भी ये है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली पैकेज है, सस्ता पैकेज है। खास करके अगर आप लाइसेंस वर्जन भी ले रहे हैं तो 10,000 के आसपास ये आ जाता है। और पायरेटेड में तो आप देखेंगे कि जहाँ कहीं कंप्यूटर, लैपटॉप सिस्टम्स है, इवन हमारा आज की डेट में एंड्रॉइड का स्मार्टफोन, वहां पे भी आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक ही पैकेज इंस्टॉलेशन दिखेगा उसका, और वो होता है मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी क्या, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पैकेज है। बात करते हैं इसके आगे की स्टैटिस्टिक्स की। जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में एक दिन में 3 करोड़ प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, और हमारे इंटरेस्ट का एरिया है कि इसमें से 90% प्रेजेंटेशन अनबियरेबल कैटेगरी में जाते हैं। ये वो प्रेजेंटेशन है, 100 में से 90 प्रेजेंटेशन जो देख के लोग बोर होते हैं।
लगता है जैसे टॉर्चरिंग हो रहा है कुछ तो भी। ये तो एक थ्योरी कहती है, और एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये आंकड़ा और गहरा है। उसमें तो 95% प्रेजेंटेशंस को मंडेन कैटेगरी में डाला है। मंडेन का मतलब है इंसिपिड, जिसमें कोई लाइवलीनेस नहीं है, जिसमें कोई जान नहीं है। वो प्रेजेंटेशन देखना यानी बोरिंग एक फीलिंग आना, ऐसा कहा जाता है। स्वाभाविक है, इसका एनालिसिस अगर करते हैं हम लोग कि क्या कारण है कि दुनिया में जो 100 लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें से 95 प्रेजेंटेशंस मंडेन या बोरिंग कैटेगरी में जाते हैं। उसका कारण मैं 2 स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड्स अगर ऐसे दिखती है या फिर ऐसे दिखती है, और मैक्सिमम टाइम हमको ये ऐसी स्लाइड्स दिखती है जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं या फिर बनाते हैं। इसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन में जान नहीं लगती है, इंसिपिड से लगते हैं, बोरिंग से लगते हैं। लेकिन इंडिया में रियल सेंस में 1993 में कंप्यूटर का पेनिट्रेशन हुआ और 1995 में इंटरनेट आ। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और वो रियल सेंस में बोल रहा हूँ। 80s में कंप्यूटर आ चुके थे इंडिया में, और एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए 1993 आ गया था। 1993 ने आपने भी जो पहली बार पीसी देखा होगा, जिसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, वो आपने भी पहली बार जब देखा होगा तो ब्लैक कलर का कैबिनेट देखा होगा आपने मॉनिटर का, इवन सीपीयू का भी। और ये बल्क के यूनिट्स थे। इसका कीबोर्ड भी जाड़ा सा रहता था, इसकी कीज भी हार्ड रहती थी। इसके मॉनिटर जो है, इसमें डिस्प्ले जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, सीपीयू का साइज बड़ा था। 2021 की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में डेस्कटॉप ये चीज तो क्या बोलते हैं, कीबोर्ड जो है ये स्मूथ हो चुका है, साइज श्रिंक हो चुका है, मॉनिटर कलरफुल हो चुके हैं। यानी क्या, जो चीज यूज करके प्रेजेंटेशंस बनाए जाते हैं वो चीज तो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कंप्यूटर का ही तो उपयोग करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। और पिछले 27-28 सालों में जो चीज यूज करके प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और आप देखेंगे प्रेजेंटेशन तैयार करने का तरीका 1993 में भी ये ऐसा था। आप देख सकते हो, ये 1993 में प्रेजेंटेशंस ऐसे बनाए जाते थे और 2021 में ये ऐसे बनाए जा रहे हैं। यानी क्या, प्रेजेंटेशन बनाने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हाँ, टेम्पलेट्स थोड़े बहुत चेंज हो चुके होंगे, पर तरीका जो है, मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके की, ये वाला तरीका। यहाँ पे भी हेडिंग है, यहाँ पे भी हेडिंग है, यहाँ पे भी बुलेट पॉइंट है, यहाँ पे भी बुलेट पॉइंट है। यानी क्या, कंप्यूटर सिस्टम तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पर प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका अभी भी नहीं बदला है। आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि प्रेजेंटेशंस तैयार कैसे करते हैं, उसको लेके रिटर्न रूल्स है। आपके साथ आज मैं कुछ रूल्स शेयर कर रहा हूँ, और ये रूल्स टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। 2005 में एक बड़ा बदलाव आया था और रिटर्न रूल्स आए थे। जापानीज एक बंदा है गाय कावासाकी, जिसने इसके ऊपर बहुत काम किया है। और कुछ बंदे हैं, टफ्टे सर है, एडवर्ड टफ्ट, उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है विजुअलाइजेशन को लेके। और स्टीव जॉब्स, हाँ आपने सही सुना, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर एमडी है, उन्होंने भी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है कि पावरपॉइंट की स्लाइड्स बनाते कैसे है, उसको लेके रिटर्न रूल्स लिखे गए हैं। और इंसिडेंटली हम लोग प्रेजेंटेशन तो बनाते आ रहे हैं, पर हम में से बहुत सारे लोगों को अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है कि इसको लेके कुछ रूल्स हैं। आज कुछ बात करेंगे इसी को लेके। क्योंकि हम लोग जब प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, हमारा फोकस जो होता है टॉपिक पे और टॉपिक के कंटेंट पे। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने में। हम लोग उसमें कंटेंट्स क्या हो, सब्सटेंस रीच कैसे हो सकता है वो, या फिर आप इंटरनेट की साइट्स ढूंढते हो कि अच्छे से अच्छे बुलेट पॉइंट्स वहां पे जाए, या फिर आप किताबें पढ़ते हो, और वो सब हम पावरपॉइंट की स्लाइड्स में टाइप करने की कोशिश करते हैं। और ये एक हमेशा का तरीका है कि प्रेजेंटेशन तैयार करते वक्त मैक्सिमम लोगों का फोकस कंटेंट पे होता है, और वो कंटेंट को परोसने पे शायद बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि खाना सिर्फ अच्छा बना के नहीं होगा। खाने की अगर लैविश गार्निशिंग कर दो ना, तो खाने की लज्जत बढ़ जाती है। यही रूल मेरे ख्याल से पावरपॉइंट की स्लाइड्स के साथ जाता है।
पावर पॉइंट के कंटेंट्स बहुत बेहतर होने ही चाहिए, नो डाउट। पावर पॉइंट के कंटेंट्स बहुत अच्छे होने के बाद भी अगर आप उसको ठीक से सजा नहीं रहे हो तो फिर अच्छे कंटेंट भी ऑर्डिनरी कैटेगरी में चले जाते हैं। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ visual presentation, yeah, giving some visual appeal to your PowerPoint presentation just to make it more effective. मेरा एक सवाल है आप सबसे, आप ये वर्कशॉप तो कर ही रहे, इससे पहले भी आपने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए होंगे, कोविड की सिचुएशन में भी आपने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, और पूरी लाइफ में कम से कम 100-200 वर्कशॉप्स तो हमने अटेंड किए, शायद ये आंकड़ा 1000 तक भी जा सकता है। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि हम लोगों को, हमने जितने भी प्रेजेंटेशंस आज तक अटेंड किए हैं उसमें से कितने याद रहे हैं? आपको याद करना पड़ता है, वो इतने आसानी से याद नहीं आता है कि यार ये मैंने 1000 प्रेजेंटेशन देखे और ये 3 प्रेजेंटेशन शायद बहुत बेहतरीन थे, इसको याद करना होता है। उसका कारण ही ये है, याद करने में स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं, शायद उसमें जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक शायद मिसिंग है। और हाँ, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ सवाल, तो आपने याद करने की कोशिश जरूर की होगी, और कुछ प्रेजेंटेशंस तो आपकी आंखों के सामने आए होंगे। 1000 में अगर आपको 2-3 प्रेजेंटेशन सही में याद आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंटेशंस प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की कैटेगरी में जाएंगे। प्रोफेशनल presentations are those presentations which linger on the minds of your audience for a quite longer period of time. जो प्रेजेंटेशन की रिकॉल वैल्यू, मेमोरेबल वैल्यू ज्यादा होती है, ऐसे प्रेजेंटेशंस वेल क्राफ्टेड प्रेजेंटेशंस कहलाते हैं। चलिए आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आगे मैं आपको 11 टिप्स शेयर कर रहा हूँ, जिससे, और सिंपल सी ट्रिक्स है ये, जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर पे कमांड होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टेक्नो savvy होने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल से ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपके प्रेजेंटेशंस की स्लाइड्स को एक लाइवलीनेस आ जाए और थोड़ी इफेक्टिव हो जाए, विजुअली बेटर हो जाए। और एक तरीका तो मुझे ये लगता है कि मेरी आज की स्लाइड्स अगर आप केयरफुली देखेंगे तो शायद आपको कुछ सब्टल मैसेजेस मिल जाएंगे कि पावरपॉइंट की स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पावरपॉइंट की स्लाइड्स बेस्ट है, पर हाँ, एक तो जरूर कह सकता हूँ कि आपने अभी तक जो पावरपॉइंट की स्लाइड्स देखी है उससे शायद थोड़ी सी अलग है, और शायद थोड़ी सी बेटर लगती है। तो ये बेस्ट कैटेगरी में तो जरूर मैं इसको नहीं कहूंगा, इससे बेस्ट, इससे बेटर भी मैंने खुद ने भी देखी है स्लाइड्स, पर मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है वो यूज करके मैंने मेरी स्लाइड्स बनाने की कोशिश की है। और देखिए, प्रेजेंटेशंस के बारे में मैं बात कर रहा था कि कौन से प्रेजेंटेशंस याद रहते हैं। वो प्रेजेंटेशन जनरली याद रहते हैं जिसमें ना प्रेजेंटर ने टाइम दिया हो। आप अगर स्लाइड्स बनाने के लिए टाइम देते हो, एक जनरल आदत आपने भी देखी हो कि आप पीएटी के सुपरवाइजर भी होंगे या आपके स्टूडेंट्स भी, उनको जब प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग कहते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन में कभी जान नहीं हो सकती है। प्रेजेंटेशन बेहतर करने हैं तो उसको टाइम देना होगा। आज मेरी जो स्लाइड्स है, एक एक स्लाइड को मैंने टाइम दिया हुआ है। जब मैं शुरू में ये सब कर रहा था तो मुझे आधा आधा घंटा एक स्लाइड बनाने के लिए लग जाता, आज मुझे 2 या 3 मिनट में एक स्लाइड बन जाती है मेरी। पर प्रोफेशनल स्लाइड्स बनानी है तो वो, उसमें प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसको टाइम देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और खास करके रूटीन प्रेजेंटेशंस में तो इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, पर खास करके जो जिंदगी के इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे आपका पीआईटी का वाइवा, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, आप कहीं पे की नोट एड्रेस डिलीवर कर रहे हो किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की, तो जो रूटीन तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो तरीका तो वहां पे शायद काम में नहीं आएगा ना। उसमें तो हमको बेहतर, नहीं शायद बेस्ट करना होगा हमको, क्योंकि आप कीनोट स्पीकर है, तो हर हर सेंस में हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो बेटर ही होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना भी मुझे लगता है जरूरी है। और मैंने, मेरा एक रूल है कि 1 घंटे के एक प्रेजेंटेशन के लिए लगभग मैं 300 घंटे काम करता हूँ। आपने ठीक सुना है, जब मुझे कोई 1 घंटे के लिए कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है तो मैं उसके ऊपर 300 घंटे काम करता हूँ।
स्टीव जॉब्स का एक रूल है, उसने एक प्रेजेंटेशन के लिए उसने 90 मिनट यानी 1.5 घंटा बोला है, 90 आवर्स बोला है उसने, 90 आवर्स। 1 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए 90 आवर्स, और उसका 30 घंटे के ऐसे 3 लॉट्स उसने बनाए हैं। और मार्क ट्वेन जो थे वो भी 21 दिन 1 घंटे के एक लेक्चर के लिए तैयारी करते थे। यानी जितने भी रिनोन्ड स्पीकर्स हैं ना, उन सब ने अपने प्रेजेंटेशन पे बहुत बारीकी से काम किया, और शायद इसीलिए तो टॉप प्रेजेंटर्स इन द वर्ल्ड इस कैटेगरी में वो चले गए हैं ना। आज भी आप गूगल में सर्च करेंगे कि टॉप 10 बेस्ट पॉइंट प्रेजेंटर्स इन द वर्ल्ड, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें स्टीव जॉब का नाम आपको ऊपर में मिलेगा। और उसने एक किताब भी लिखी है, मैं आपके साथ अभी शेयर भी कर रहा हूँ उस किताब का नाम। और बहुत बेहतरीन किताब है, मैंने मालूम नहीं कितनी बार पढ़ी वो, और हर बार मुझे उसमें कुछ न कुछ नए इंसाइट्स मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी अच्छे प्रेजेंटर्स हैं ना, उन्होंने सिर्फ कंटेंट पे काम नहीं किया है, उन्होंने विजुअल्स पे भी उतना ही काम किया है जितना कंटेंट पे काम किया है। स्टीव जॉब का रोल ये है कि 1 घंटे के एक प्रेजेंटेशन के लिए 30 घंटे आप करेंगे काम कंटेंट पे, और 30 घंटे काम करेंगे आप स्लाइड्स को सजाने के लिए, है ना। सो इसका इम्पोर्टेंस तो है विजुअल अपील का किसी भी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में। चलिए शुरू करते हैं। मैं 11 टिप्स शेयर कर रहा हूँ यहाँ से आगे। देखते हैं 10 तो कंफर्टेबली, या 9 या 10 तक तो कंफर्टेबली हम लोग पहुंच जाएंगे। लेट अस सी। देखिए, मैगी हर घर में बनती है, और जो हर घर में मैगी बनती है शायद उसका स्वरूप बनने के बाद ऐसा दिखता है, जिसको मैं कहता हूँ ऑर्डिनरी मैगी। और आप ये मैगी देखेंगे, ये भी मैगी ही है ना। विजुअली आपको कौन सी बेटर लग रही है, खाने की इच्छा शायद इसमें ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसमें जान है। इसमें ना तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका आप देखेंगे, इसमें भी मटर है, इसमें भी ऑलिव्स यूज किए हैं। यानी मैं बात क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन तो सभी लोग बनाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ बेटर करने की, विजुअली बेटर, वेल क्राफ्टेड। एक कलिनरी वर्ड में कैप्शन है जिसमें कहा गया है कि आदमी पहले आंखों से खाता है और बाद में मुंह से खाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, खाना खाते वक्त आदमी आंखों से पहले खाता है और बाद में मुंह से खाता है। यानी क्या, आपके सामने अगर कोई डिश परोसी है, तो वो खाना है कि नहीं खाना है, वो आंखें डिसाइड करती है, और उसके बाद मुंह का रोल कम्स इनटू प्ले। और प्रेजेंटेशन में भी वही है, क्योंकि आज भी, आज की मेरे प्रेजेंटेशन का एपिसोड थोड़ा सा ध्यान में लीजिए कि जैसे ही मैंने आज के सेशन में साइन इन किया, प्रीति मैम ने मुझे शेयर ऑप्शंस दिया, और मैंने पावरपॉइंट स्लाइड शेयर कर दी। यानी आपने तो बाद में मुझे सुना है ना, पहले तो मेरा प्रेजेंटेशन देखा है आपने। और जनरली यही होता है, ऑडियंस पहले देखता है और बाद में सुनता है। और मेरी पहली स्लाइड जो थी, उससे थोड़ा सा मूड तो बन जाता है ना यार, कि वो जो पर्पल कलर का बैकग्राउंड, ऐसी स्लाइड की जो आज तक कभी कहीं देखी नहीं है, मूड बन जाता है कि यार सही में ये बंदा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो इसका खुद का प्रेजेंटेशन तो बेटर लग रहा है यार, चलो सुनने के मूड में तो आ जाते हैं, शायद आज कुछ नया सीखने को मिला। ये बात हो जाती है जब आप विजुअल्स पे काम करते हो। देखिए, पावरपॉइंट में अनगिनत फंक्शंस है, लगभग 1000 फंक्शंस है, और उसमें से शायद हम लोग 5% भी ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा प्रेजेंटेशन आम लोगों के जैसा बन जाता है। मेरी तरफ से टिप ये भी है कि हजारों फंक्शंस पावर पॉइंट में होने के बाद अगर आप सिर्फ 50 यूज करोगे तो शायद ऑर्डिनरी कैटेगरी में। मैं बात कर रहा हूँ 50 से 100 पे कैसे पहुंचेंगे। अगर 50 से 100 फंक्शंस भी आप यूज कर रहे हो तो 4 लोगों से तो बेटर प्रेजेंटेशन हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे 1000 यूज कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक आम आदमी अगर 50 यूज कर रहा है तो मैं 200 यूज कर रहा हूँ, पूरे 1000 तक तो मैं भी नहीं पहुंचा हूँ। हाँ, पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल जो वर्कशॉप्स लेता हूँ उसमें बता देता हूँ, पर रूटीन में वहां तक इतना डिटेल में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, मेरी जिंदगी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें मैं मेरा बेस्ट तो लगा देता हूँ, कि जितने ज्यादा फंक्शंस यूज कर सकूँ वो लगा देता हूँ। उसमें पावर पॉइंट में एक फंक्शन है जिसको कहते हैं ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू, अगर ग्रिड व्यू आप लेते हो तो आपके प्रेजेंटेशंस में स्लाइड्स जो है उसका ये ग्रिड व्यू मिल जाता है, जैसे आपके स्क्रीन पे है।
इसको ग्रिड व्यू कहते हैं। इसमें स्लाइड नंबर आप देख रहे हैं कि स्लाइड नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, लाइकवाइज इसमें जैसे 20 स्लाइड का एक ग्रिड व्यू मिल रहा है हम लोगों को। ओके, अभी ये जो ग्रिड व्यू है ना, ये है ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन। ये क्यों? आप देखेंगे हर एक स्लाइड जो है उसका टेम्पलेट सेम है। देख रहे हैं? हर एक में टेम्पलेट सेम यूज किया है, लेआउटिंग सेम है। यहाँ पे बुलेट है, यहाँ पे बुलेट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है। इसमें ना ही कोई पिक्चर्स दिख रहे हैं, ना ही कोई इमेजेस दिख रही है, सिर्फ टेक्स्ट और एक स्टीरियोटिपिकल पैटर्न ऑल थ्रू द प्रेजेंटेशन चल रहा है। इसकी वजह से हमारा प्रेजेंटेशन मंडेन हो जाता है। मंडेन का मतलब है बोरिंग या फिर इनसिपिड, जिसमें कोई जान नहीं है। इसका एक बड़ा लिमिटेशन यह है कि जो प्रेजेंट कर रहा है उसको भी स्लाइड चेंज करने के बाद एक बार कंफर्म करना होता है कि क्या सही में स्लाइड चेंज हो गई है, क्योंकि सभी स्लाइड एक जैसी ही है ना। ऑडियंस को भी पता नहीं चलता है कि स्लाइड चेंज हुई है या नहीं हुई है। अभी आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसका मैंने एक छोटा सा ग्रिड व्यू लिया है। आप देख रहे हो, ये मेरे आज के प्रेजेंटेशन का ग्रिड व्यू है। आने वाली स्लाइड्स में आपको ये सब स्लाइड्स दिखने को मिलेगी। आप देख सकते हो हर एक स्लाइड एक दूसरे से अलग है, क्योंकि मैंने इसको क्राफ्ट किया है, इसको वेल मेड कहते हैं। हर एक स्लाइड को एक डिफरेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। इससे ना हर एक स्लाइड पे एक्साइटमेंट बना होता है कि आने वाली स्लाइड में क्या आने वाला है। आपका ऑडियंस जो है ना, वो ग्लूड रहता है स्क्रीन से। वो ना लेक्चर बीच में ऑफ करने की कोशिश नहीं करता है, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है वो। और एज ए प्रेजेंटर हम सबकी इच्छा यही होती है ना कि हम इतनी मेहनत करके आए हैं, तो जिनके लिए मेहनत की है कम से कम वो अटेंटिव तो रहे ऑल थ्रू द प्रेजेंटेशन। और उनको एंगेज करने का, उनका अटेंशन बरकरार रखने का एक बेहतरीन तरीका है आपके पावर पॉइंट की स्लाइड्स में विजुअल्स इन्फ्यूज करना, ग्रेट विजुअल्स, सो दैट स्लाइड्स में जान आ जाए और एक ऐसा फील मिल जाए कि यार बेहतरीन प्रेजेंटेशन देखा आज। तो ये एक इम्पोर्टेंस है विजुअल प्रेजेंटेशन का। 11 टिप्स शेयर कर रहा हूँ, उसमें से टिप नंबर 1 पे अभी हम लोग हैं। मेरी तरफ से टिप नंबर 1 ये है कि आप जब भी स्लाइड्स बनाते हो, जब भी एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो किसी टॉपिक पे, बोरिंग होने का सबसे पहला कारण ये होता है कि आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अगर आप आपके प्रेजेंटेशन को ठीक से ऑर्गेनाइज करोगे तो फिर आपका ऑडियंस जो है वो अटेंटिव रहता है। जैसे आज के मेरे प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी तक जो आपने देखा, मेरा चल रहा था एक बैकग्राउंड क्रिएट करना। मैं जो टॉपिक डील करने वाला हूँ उसको लेके क्यूरियोसिटी, मैंने अभी पिनाकल पे आ गए यार। और अभी सुनने के मूड में तो आ गए हैं कि यार बैकग्राउंड तो बहुत बढ़िया बताया सर ने। अभी बात करते हैं कि यार सर क्या टिप्स देने वाले हैं। मैंने मूड तो बना लिया है आपका। और एज ए प्रेजेंटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि शुरू में ऑडियंस को मूड में तो लेके आओ कि आपका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन वो सुने एक जगह बैठ के। और ये तभी होगा जब आपका प्रेजेंटेशन ठीक से ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे मैंने आपको अभी, मेरा 20-25 मिनट के प्रेजेंटेशन का टाइम हो चुका है और मैंने आपको मालूम नहीं कितनी बार बताया है कि मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। और मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं 11 टिप्स शेयर करने वाला हूँ। यानी आपको सीधा सीधा मालूम है कि मेरा प्रेजेंटेशन कहाँ से शुरू हो रहा, कहाँ पे खत्म हो रहा है। यानी क्या, अभी हम लोग टिप नंबर 1 पे है, फिर 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, ऐसे करते करते मैं 11 तक पहुंचूंगा, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वो होता है जिसमें ऑडियंस को पता होता है कि व्हाट इज द लेआउट ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन, फ्रेमवर्क क्या है, आउटलाइन क्या है प्रेजेंटेशन की, कौन से मुद्दे चर्चा करने वाले हैं। ये जब क्लियर रहता है ना ऑडियंस को, तो फिर ऑडियंस कनेक्टेड रहता है। अगर आप यही नहीं शेयर करोगे कि आप क्या बताने वाले हो, तो ऑडियंस क्लूलेस रहेगा। और शुरू में अगर उसके काम का उसको नहीं मिला तो वो डिटैच होना शुरू हो जाएगा। लॉगिन तो रहेगा वो ऑनलाइन, पर शायद छोड़ के अपने काम को लग जाएगा। और एज ए प्रेजेंटर हमको कभी नहीं लगेगा ऐसा कि हमारा प्रेजेंटेशन कोई ऑफ करके बैठे। तो उसके लिए टिप नंबर 1 मेरी तरफ से, ट्राई टू स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन, ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट्स इन अ वेल कोहेसिव मैनर। वो कैसे करना है, वो कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के 2 तरीके माने जाते हैं। यानी प्रेजेंटेशन को मैं कैट्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। कैट्स 2 प्रकार की होती है। एक होती है अगली कैट और दूसरी होती है क्यूट कैट। अभी इस कैट की तरफ देखना किसको अच्छा नहीं लगेगा? जितनी देर देखना है देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। किसको लगेगा कि ये कैट की तरफ 1 घंटा देखे
कोई नहीं चाहेगा कि इसको बहुत देर तक कोई देखे। प्रेजेंटेशन की ऐसी ही दो कैटेगरीज होती है। एक होता है क्यूट प्रेजेंटेशंस जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगली प्रेजेंटेशन देखना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो मैसेज बहुत ही लाउड और क्लियर है। वी शुड स्ट्राइव फॉर मेकिंग आवर प्रेजेंटेशन वेरी क्यूट एंड वी शुड डू अवे विथ दिस अगली प्रेजेंटेशन। ये तो थोड़ा सा ह्यूमर सेंस में हो गया, अभी थोड़ा टेक्निकल सेंस में बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन की दो कैटेगरीज होती है। एक होता है प्रेजेंटेशन का टेक्निकल एस्पेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स, कि आप सब्सटेंस क्या दे रहे हो, आप आपके ऑडियंस को टेक अवेज क्या दे रहे हो, एंड दिस इज व्हाट फॉर योर ऑडियंस इज अटेंडिंग योर सेशन। कंटेंट के लिए ही तो आज भी तो आप कंटेंट के लिए ही तो मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो ना, तो आई शुड टेक अटमोस्ट केयर दैट आई शुड गिव यू सम कॉन्क्रीट टेक अवेज। 90 मिनट आपके लगे हैं जिंदगी के, मेरे लगे हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा मीनिंगफुल करें। तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंटेंट। योर प्रेजेंटेशन शुड बी कंटेंट रिच, नो डाउट अबाउट दैट। पर उसी कंटेंट को दूसरा एस्पेक्ट अगर कॉम्प्लीमेंट कर देना, जिसको कहते हैं परस्यूएसिव अपील। परस्यूएसिव का मतलब है विजुअल्स। इफ योर प्रेजेंटेशन इज विजुअली ग्रेट and content rich, then obviously your presentation will fall under the category of effective presentation. हे प्रकरण काल कसं झालं त्याच्या पालकांनी कंप्लेंट केली अतिशय भास्कर सर, आप यातपणे बोलला. भास्कर सर, पहिल्यांदा माझ्याशी बोलला तो ऑनलाईन सर मी त्यांना एक्सपेल केलंय मीटिंग मधनं, कारण की माझ्याकडनं पण ते म्यूट नाही होत आहे. सर प्लीज कंटिन्यू. okay ma'am. Okay. So this is what I was explaining you. There are two aspects to any presentation. One is technical aspect and another is persuasive aspect. And professional presentation is a presentation which is combining the features of both the technical aspect and persuasive both. Means your presentation should be content rich and it should be visually great as well. So we'll just talk about how to structure our presentation. देखिए, ऑडियंस डिस्कनेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपका प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके कंटेंट्स जो है वो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया है। ऑर्गेनाइज करना यानी क्या, आपका जो भी टॉपिक है उसमें से जो सब थीम्स है, यू जस्ट ट्राई टू मेक सेपरेट सेक्शंस, try to make separate sections for different themes under the same topic, so that your audience could get connect with what is happening, and in because it is going to have some natural flow once you configure your entire presentation in some apparent sections. अगर वो वैसा नहीं है, एक के बाद एक स्लाइड्स अगर आप दिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली ऑडियंस के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, ये कब तक चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये क्या चल रहा है। यानी क्या, स्लाइड के ऊपर स्लाइड्स, बुलेट पॉइंट के ऊपर बुलेट पॉइंट, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है थॉट्स में, तो ऑब्वियसली ऑडियंस डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग थ्योरी, प्रेजेंटेशन के सेंस में सेगमेंटेशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग थ्योरी। इसमें यह कहा गया है कि पीपल विल कॉम्प्रहेंड बेटर व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन स्मॉलर चंक्स और स्मॉलर लॉट्स। आपके टॉपिक को आप छोटे छोटे हिस्सों में अगर इनपुट के फॉर्म में सर्व करते हो, तो उसका इफेक्टिवनेस जो है, मैसेजेस का इफेक्टिवनेस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है। And this is the importance of organizing your presentation in smaller sections. The entire presentation should be divided in subtopics. And for each subtopic, we can make a separate section. We can devote one particular section to one particular sub-theme under the major theme. This is what segmentation principle of multimedia learning theory is preaching about. So, at the outset you need to outline the key takeaways. यानी 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में आप ऑडियंस को क्या देना चाहते हो। इफ यू कुड लिस्ट आउट, these are the 4 things I wish to share, that's it, that's all. And if you could list out कि these are the key 4 messages that you can take away from my today's session. So obviously for each particular message, if you could prepare one particular section, your presentation will be organized in a proper manner.
and your audience will take interest into it, because at the outset you are clearing that what you are going to share, these are the 4 takeaways that you will, यानी क्या, आपके ऑडियंस को मत डिसाइड करने दो कि उनको आपका प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्या याद रखना है। एज ए प्रेजेंटर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपके ऑडियंस ने आपके प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्या याद रखना चाहिए। यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, यू लिस्ट इट आउट and try to develop content on each key takeaway, the bullet points over here and the separate slides over here in each apparent section। जैसे आज का मेरा प्रेजेंटेशन मैंने बता दिया है ना आपको कि 11 टिप्स शेयर करूंगा, और ये एक्चुअली 3 घंटे का प्रेजेंटेशन है मेरे 11 वाला, पर फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे, पर मैंने बता तो दिया है आपको 11 टिप्स की बात करेंगे। ओके, और हर एक टिप को लेके मैं आपको, अभी मैसेज टिप नंबर 1 में मेरा मैसेज एक ही है, क्लियर। Try to organize your presentation, try to structure your thoughts in a proper manner। और ये पॉइंट को कन्विंस करने के लिए मैं आपको एक स्लाइड अनफोल्ड करके कुछ टिप्स दे रहा हूं। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। एक थियरी है, मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे भी बहुत सारा काम किया है, और ये ना सेपरेट डिसिप्लिन है प्रेजेंटेशन, या फिर जिसको हम लोग इसमें ना ओरेटरशिप या पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन्स है जिससे प्रेजेंटेशन ये एक बड़ी चीज बन जाती है। स्टेज कॉन्फिडेंस, स्टेज प्रेजेंस बोलिए, आप अपीयरेंस बोलिए, वॉइस मॉड्यूलेशंस बोलिए, एक्सप्रेशंस बोलिए, योर बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजों का पैकेज बन के एक चीज उभर के आती है जिसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसमें बहुत सारा काम मैंने किया है, बहुत सारा पढ़ा हुआ भी है। उसमें ना एक थ्योरी मुझे जो समझ में आई है, उसमें ये कहा गया है कि 50 मिनट के एक प्रेजेंटेशन में, या लगभग 1 घंटा आप बोल लीजिए, कि अगर आप 1 घंटा प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपका ऑडियंस कोई भी 3 चीजें याद रख सकता है जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। और खास करके 72 घंटे के बाद कोई भी आदमी आपके प्रेजेंटेशन में से कोई भी 3 चीजें याद रख सकता है 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में। तो मैसेज बहुत ही क्लियर है। अगर यही चीज समझ में आ गई है तो ऑब्वियसली हम लोग केयर ये लेंगे कि आपका अगर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है तो उसमें 3 चीजें 72 घंटे के बाद या जिंदगी भर उसने याद रखनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी होगी, वही लिस्ट आउट कर लेते हैं ना कि यू नो, दिस इज द मैसेज नंबर 1, दिस इज मैसेज नंबर 2 एंड दिस इज मैसेज नंबर 3। और ये 3 को लेके ही आप अपेरेंट सेक्शंस बना लो और उसमें ही इनपुट फोकस करिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल। योर प्रेजेंटेशन विल बी लिंगर्ड on the minds of your audience for a quite longer period of time, and this is the trick boss। देखिए, जब प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज हो जाता है ना तो उसको एक नेचुरल सा फ्लो आ जाता है। और आपको भी मालूम है कि फ्लो का, मोमेंटम का कितना इंपॉर्टेंस है प्रेजेंटेशन में, एंड यू विल अचीव दिस फ्लो, सो नेचुरल फ्लो, वंस यू स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग योर प्रेजेंटेशंस इन apparent sections, and that too arranged in a proper logical order। So this is what we are supposed to achieve while creating our PowerPoint slides। As you can see the message over here, आपने ये बहुत बार किया भी होगा बचपन में, मैं तो अभी भी करता हूँ। जब कभी भी तालाब दिखता है फ्लैट सरफेस वाला पत्थर लेके हम लोग उछालते हैं, जस्ट सो एज टू अचीव सम काइंड ऑफ बाउंसेस, मल्टीपल बाउंसेस। तो प्रेजेंटेशन में यही थ्योरी लागू होती है कि आप सेक्शन नंबर 1 में जाइए, योर मैसेज नंबर 1, ट्राई टू क्रिएट रिपल्स ओवर इट विथ मल्टीपल स्लाइड्स, then jump on to the second message, then try to create ripples over it, convince your audience with the messages and inputs on this particular section, then move on to message number 3 and again try to create a ripples over it। So if you do so, it will create some kind of it will create some kind of interest। बालाजी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सर कंटिन्यू, मी म्यूट केलं त्यांना। अच्छा, मला वाटलं काही प्रश्न विचारत होते। हां, ओके ओके, सो ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, तो उसमें एक एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू टेक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अप्रोच। जब हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो लॉजिकल स्टेप्स फॉलो की जाती है, दोज लॉजिकल स्टेप्स वी आर सपोज टू फॉलो। बिल्डिंग बनाते वक्त सबसे पहले पिलर्स, उसके बाद स्लैब और उसके बाद ब्रिक वर्क। यही चीज आप प्रेजेंटेशन के साथ कर सकते हो। पिलर्स यानी क्या, हम लोगों को कितने सेक्शंस लगेंगे, यानी एक जो ब्रॉड टॉपिक है उसको लेके आप कितने पिलर्स डालोगे, यानी क्या, कितने सब टॉपिक्स आप बनाओगे और वो हेड्स क्या रहेंगे। उसके बाद आएगा स्लैब।
स्लैब काम करता है कि ये जो सेक्शन सब टॉपिक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसको किस ऑर्डर में आपको सजाना है, कि पहला कौन सा मुद्दा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा। और ऑब्वियसली ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, जिसको कहते हैं हम लोग एक आउटलाइन, एक दायरा, जिसको मैं कहता हूँ स्लैब। और उसके बाद आता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क का मतलब है एक एक सेक्शन उठाएंगे और उसमें एक एक सब्टल मैसेजेस देने की कोशिश करेंगे अलग अलग स्लाइड्स पे। सो इफ यू कुड फॉलो दिस पर्टिकुलर एनालॉजी, obviously your presentation, the outcome will be, it will be a more structured and well organized presentation you could achieve. कि कोई भी प्रेजेंटेशन हो वो 3 हिस्सों में जनरली डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का। हम लोग एब्रप्टली प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करते हैं। आज आपने भी देखा होगा कि मैंने कुछ कैप्शंस और कुछ एनालॉजीज, कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किया, एक अच्छा खासा मूड सेटअप किया मेरी आज की टॉपिक को लेके, कुछ एविडेंसेस बताया मैंने आपको, कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर किए, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग कैप्शंस आपके साथ शेयर किए मैंने। वो हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। उसके बाद आता है बॉडी, द मेन कंटेंट, आपके मेन सेक्शंस, मेन मैसेजेस। और उसके बाद आता है, जैसे प्रेजेंटेशन कोई भी एब्रप्टली शुरू नहीं करते हैं वैसे ही एब्रप्टली खत्म भी नहीं करते। वी आर सपोज टू समराइज इट, वी आर सपोज टू कंक्लूड इट इन अ, यू नो, जैसे आइसिंग ऑन द केक कहते हैं ना, कि बेहतरीन काम आपने बॉडी में कर लिया है, तो ट्राई टू गिव better finishing touches to your presentation. So try to take utmost care that you have worked on all the three things. Ki what kind of slides and messages you will incorporate in your introduction part, and what will body constitute, and eventually how will you summarize your presentation. देखिए, ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, उसमें मेरी तरफ से कुछ सबटल मैसेजेस ये हैं कि एक एक स्लाइड शुरू में ये होनी चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन का की ऑब्जेक्टिव क्या है। आज की आपके मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपने शुरू में मैंने क्लियर कर दिया कि बात क्या होने वाली है, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द की लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इफ यू कुड मेक योर ऑडियंस क्लियर विथ व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली ऑडियंस विल गेट अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज दैट व्हाट they are going to learn in through your presentation. Try to make content slide as well, कि आप एक टॉपिक पे काम कर रहे हो, उसमें 4 सब सेक्शंस, 4-5 जो भी आपको लगता है वो सब सेक्शंस क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो कौन से क्रम में आप उनके साथ डील कर रहे हो, यानी क्या, ट्राई टू प्रिपेयर अ काइंड ऑफ आउटलाइन एंड ट्राई टू शेयर दिस आउटलाइन विथ योर ऑडियंस राइट अप फ्रंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ट्राई टू हैव सेक्शन सेपरेटर्स एज वेल, कि एक सेक्शन खत्म हो गया है और दूसरे सेक्शन में मूव हो रहे हैं, ये मैसेज ऑडियंस को क्लियर हो जाना चाहिए। इसका ना अपना एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बहुत बार ना, जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, इतनी सारी जिम्मेदारियां, स्ट्रेस होता है ना कहीं डिस्कनेक्ट हो ही जाते हैं हम लोग, कुछ स्लाइड छूट जाती है, यू नो। तो जब सेक्शन सेपरेटर हम लोग इन्फ्यूज करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे पॉइंट में, तो आप एक मौका देते हो आपके ऑडियंस को आपके प्रेजेंटेशन में वापस से कनेक्ट करने के लिए। सेक्शन सेपरेटर यानी क्या, तो नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हो, यही सेक्शन सेपरेटर है। टिप नंबर 2, इसको मैं सेक्शन सेपरेटर कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, टिप नंबर 1 को लेके मेरी चर्चा हो चुकी है, अभी मैं टिप नंबर 2 में जा रहा हूँ। आप में से किसी का अगर कुछ वजह से डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, आप टिप नंबर 1 ठीक है ना, मिस हो गई, तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं यार अभी यहाँ से अटेंटिव रह सकते हो। सो दिस इज व्हाट सेक्शन सेपरेटर कैन डू फॉर यू। बात करते हैं टिप 2 की। टिप 2 में मेरा मैसेज है, ट्राई टू अवॉइड इनबिल्ट टेम्पलेट्स। अभी ये इनबिल्ट टेम्पलेट्स यानी क्या, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पावर पॉइंट का जो पैकेज है उसमें डिजाइन नाम से एक मेन्यू है। उस मेन्यू में हम लोगों को इनबिल्ट कुछ डिजाइन्स दिए जाते हैं जिसको टेम्पलेट कहा जाता है, और वो डिजाइन्स हम लोग जनरली यूज करते हैं। और मेरा कहने का मतलब ही ये है कि वो डिजाइन यूज नहीं करेंगे तो शायद प्रेजेंटेशन बेटर हो जाते हैं। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा ग्लांस लेंगे क्विकली। इसको मैं टेम्पलेट्स कहता हूँ। इस ये इनबिल्ट टेम्पलेट्स है जो पावर पॉइंट हमको ऑफर करता है। और ये टेम्पलेट्स आपने अनगिनत बार देखे होंगे या शायद यूज भी किए होंगे। देखिए, ये जो टेम्पलेट्स है ये 2007 में आए थे। 2007 में ये जो टेम्पलेट्स है ये बहुत नए थे, उस वक्त इसका नयापन था। पर आज 2021 में 14 साल हो चुके हैं ये टेम्पलेट्स देख के। तो जिनको आप दिखा रहे हो ना, उन्होंने ये बहुत बार देखा हुआ है, तो इसमें से जो नयापन है वो निकल चुका है। इसका जो लश्चर है, इसकी जो चमक है वो खत्म हो चुकी है।
और ये देखने के बाद ऑडियंस नो यार फिर से वही वही वो वाले मूड में आ जाता है कि यार फिर से रटा हुआ वही चीज। यानी ये देखने के बाद ऐसा एक फील आता है कि यार इसको कहीं देखा है, ये प्रेजेंटेशन कोई, ये कहीं देखिए यार स्लाइड्स, ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ही देखा है, ऐसा फील आ जाता है। जब आपका ऑडियंस एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ अगर बैठा है तो ऑब्वियसली वो सुनने के मूड में नहीं आ सकता है, उसको मौका नहीं देंगे। उसको कुछ तो भी ताजगी, कुछ तो भी फ्रेशनेस, कुछ तो भी नयापन अगर आप देते हो तो ऑब्वियसली वो अटेंटिव तो रहेगा, ग्लूड तो रहेगा स्लाइड्स के साथ। और वो हम लोग अचीव कर सकते हैं जब हम ये इस तरीके की स्लाइड्स यूज नहीं करेंगे। और आपने तो ये वाला खास करके अभी जो आपकी स्लाइड पे दिख रहा है, ये नीला पट्टा I don't know what makes this Nila Patta so special that many of the presenters they have been using this Nila Patta in their presentation slides. आपने देखा होगा हर 100 में से 30 तो यही दिखते हैं यार कि मालूम नहीं क्यों लोग ये यूज करते हैं। इतना ज्यादा ओवर यूज हो चुका है ये कि अभी बोरिंग सा लगता है यार, ये लगता है कि भाग जाए कहीं दूर, नहीं होना ये यू नो। सो मेरा मैसेज बहुत लाउड और क्लियर है कि नहीं यूज करेंगे ना, बहुत सारे तो है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये यूज ही नहीं करने हैं, इनबिल्ट यूज ही मत करो। ये ना आप देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब कितनी बार देखेंगे ना, बोर हो चुके हैं ये सब देख देख के अभी। तो ये पूरा का पूरा बास्केट you just do away using this particular basket if you really wish to make your presentation very fresh and unique. यूनिक का भी मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन, चार लोगों से हटके अगर कुछ करना चाहते हो तो चार लोग जो कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। ये सब वो लोग यूज कर रहे हैं जिनके प्रेजेंटेशन में जान नहीं है, तो ये यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम माय साइड, discard standard templates, the inbuilt templates. And my message to you is that if it is your presentation, then it should be your template. आप मेरी स्लाइड्स देख रहे हो ना, कहीं दिखेगा ये नीले पट्टे या ऐसा कोई, ऐसी कोई भी स्लाइड जो देख के आपको लगा कि यार ये स्लाइड तो कहीं देखी है यार? नो वे, because as a presenter I have taken utmost care that कि I should differentiate, and I should differentiate with every slide. हर एक स्लाइड मेरी ऐसी है कि जो आपने इससे पहले तो नहीं देखी होगी, यानी में इसमें नयापन है, फ्रेशनेस है। So the rule is simple. If it is your presentation, then you are supposed to prepare your own templates. ये स्टीव जॉब की तरफ से मैसेज है। Normal is boring. Try to think different, and if you do something different, you will fall in the category of extraordinary from ordinary. This is what I was talking about, differentiation. सब लोगों के प्रेजेंटेशन ये है, ये सब लोग कर रहे हैं। आप थोड़ा हटके अगर करते हो तो आप ऐसे बन जाते हो, स्टैंडिंग वेरी टॉल यू नो। और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ना आप जस्ट, मैंने भी ये जो स्लाइड्स बनाई है वो सिर्फ टेम्पलेट्स यूज नहीं किए ना, इसलिए तो चार लोगों से हटके बन गई है। और कुछ अभी टिप्स तो शेयर कर ही रहा हूँ मैं। क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पैकेज हम लोग ओपन करते हैं, कोई भी हो, उसके सामने सबसे पहले ये आता है, ये विंडो सबके सामने आएगी। और अभी ये विंडो के साथ आप क्या करते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी में जाएगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाएगा। कैनवास आता है, एंड दैट इज माय फेवरेट टेम्पलेट, बिकॉज आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर कैनवास अकॉर्डिंग टू माय ओन विश एंड डिस्क्रिप्शन। वो कैसे सजाना है वो मैं डिसाइड करूंगा ना। माइक्रोसॉफ्ट क्या बोल रहा है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप सेंटर में आपका प्रेजेंटेशन का टाइटल लिखो और यहाँ पे सब टाइटल या फिर आपका नाम लिखो। ये पावर पॉइंट बोल रहा है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये सब मना कर दो ना इसको। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या लिखना है, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कहाँ पे क्या लिखना है कड़ी में। इफ योर अप्रोच इज लाइक दिस कि वॉट एवर माइक्रोसॉफ्ट इज रिकमेंडिंग यू इन द फॉर्म ऑफ इनबिल्ट कमांड्स, you simply do away with all those commands, and automatically your presentation will fall in the category of different presentation, unique and effective presentation. देखिए ओरिजिनल टेम्पलेट्स जो है उसका अपना एक फ्रेश लुक होता है, आपके प्रेजेंटेशन को एक फ्रेश और यूनिक लुक देने का
काम करता है। आप जैसे देखेंगे ये स्लाइड आपने इससे पहले तो कहीं देखी नहीं होगी ना, और यही खासियत है कि ये मेरा प्रेजेंटेशन 4 लोगों से बेटर हो गया, क्योंकि मुझे मैसेज तो ये देना है ना, और वो मैसेज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये इमेज यूज की है, जिसकी वजह से मेरा मैसेज जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है। तो ओरिजिनल टेम्पलेट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। इट इन्फ्यूज फ्रेशनेस इन योर प्रेजेंटेशन। दिस इज द लाउड मैसेज। We're on to tip number 3 now. So, tip number 3 from my side is try to create first a positive impression with very first slide. You know, first slide का अपना एक इम्पोर्टेंस है, सर और ऐसा स्लाइड कहते हैं कि चेंज नाही फर्स्ट, झाली आहे. चेंज नाही झाली स्लाइड. अच्छा जस्ट अ मोमेंट, मी पुन्हा शेअर करतो. आता दिसतंय मॅडम? क्रिएट फर्स्ट पॉझिटिव्ह इम्प्रेशन. नाही सर हँग झालं आहे. आपली जी पॉवर पॉइंट इज अ ब्लँक स्क्रीन मला ते दिसतंय. पार्टिसिपंट्स तुम्हाला कोणती बरं, स्लाइड मी दिसते? हे दिसत आहे मॅडम पॉवर पॉइंट ओके 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 ओके. मी पुन्हा एकदा शेअर करतो. स्टॉप शेअर. मला वाटलं माझ्या इकडनं काही कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम असेल. आता टिप नंबर 3 ची स्लाइड दिसते का मॅडम? Yes, sir. Yes. Yes. हो सर. ओके, चला कंटिन्यू करू इथून. येस सर. टिप नंबर 3 मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ. Tip number 3, the message from my side is try to create first positive impression with first slide and try to use relevant templates for the theme under consideration. देखिए इंग्लिश में फ्रेज है, इट रीड्स लाइक दिस, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहते हैं, पर मैं इसको कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूं. मेरा कहना यह है कि यू कांट क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन विद सेकंड स्लाइड, और पॉइंट की प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और मेरे ख्याल से पहली स्लाइड पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे ज्यादा देर तक लिंगर करती है. आप देखेंगे फर्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा, जब हम लोग फर्स्ट स्लाइड शेयर करते हैं ना ऑडियंस के साथ, तो उस वक्त हमारा इंट्रोडक्शन चलता है या कुछ फॉर्मेलिटीज चलती है, कुछ लोग ज्वाइन करने के होते हैं, उनके लिए वेट किया जाता है, तो वो जो पीरियड है ना, वो जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होता है, और पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे लगता है फर्स्ट स्लाइड सबसे ज्यादा देर तक ऑडियंस देखते हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राई टू लेवरेज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. आपका ऑडियंस अगर कोई स्लाइड बहुत ज्यादातर देर तक देख रहा है, तो उसको अच्छी चीज दिखाओ. यानी क्या, पहली स्लाइड से ही मैसेज मिल जाना चाहिए कि यू जस्ट कांट अंडर एस्टिमेट माई प्रेजेंटेशन. ये बिना बोले आप बता सकते हो कि आज आप बहुत ही मीनिंगफुल कुछ सुनने वाले हो, और एक एक्साइटमेंट आप क्रिएट कर सकते हो पहली स्लाइड के साथ. ये इंपॉर्टेंस है पहली स्लाइड का. हाउ टू अचीव दिस, कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं मैं. देखिए, अगर पहले स्लाइड की जो भी थीम है उसके साथ आपका जो टेम्पलेट या इमेजेस आप यूज कर रहे हो वो रिलेवेंट अगर है, तो बात बेहतर बन जाती है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए, ये अभी मैं कुछ बैड स्लाइड्स के एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई है जो अभी आपकी स्क्रीन पे आएगी. ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो मुझे कहीं पे दिखी, इंटरनेट पे हो या कहीं और मुझे दिखी, और यहाँ पे किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करना जरा भी इंटेंशन नहीं है, पर स्लाइड्स कैसी नहीं होनी चाहिए वो बताने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ. आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, और उसके लिए जो टेम्पलेट यूज किया गया है वो, इसमें कोई मैच नहीं लग रहा है. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, फंक्शन का मतलब होता है मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, और उसको लेके टेम्पलेट क्या यूज किया गया है, तो ये लग्नाची पत्रिका ज्याला आपण म्हणतो ना, शादी का इन्विटेशन कार्ड, उसका कोई टेम्पलेट दिख रहा है. हाँ, अगर ये शादी से रिलेटेड कोई टॉपिक होता तो ये बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट मैंने माना होता इसको, पर टॉपिक जो है वो और जो टेम्पलेट यूज किया गया है वो, उसमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है. मेरा मैसेज ये है कि जो भी मैसेजेस, जो भी टॉपिक है, उससे रिलेवेंट अगर टेम्पलेट रहा तो ऑडियंस वो चीज रिलेट कर सकती है,
ऑडियंस एंगेज हो सकती है और ऑडियंस कॉग्निजेंस भी लेती है इस चीज का कि आपने कितनी बारीकाई से ये चीजों पे काम किया है, आपने कितनी मेहनत की है प्रेजेंटेशन पे, ये पता चलता है। और ऑडियंस को ये सब्टल मैसेजेस आप बिना कहे दे सकते हो कि मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, प्लीज मुझे सुनिए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मैसेज अगर आपको बिना कहे देना है तो मुझे लगता है पहली स्लाइड पे बेहतरीन अच्छा काम करो। रिलीवेंट टेम्पलेट लो, जो भी थीम है उसके साथ मिलते जुलते इमेजेस गूगल पे जनरली मिल जाती है, यूज करने की कोशिश करिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टॉपिक है केस स्टडी का और दिखा क्या रहे तो समंदर। अभी मुझे बताइए केस स्टडी और समंदर, इसका कोई कनेक्शन है क्या दूर दूर तक? व्हाट इज ए केस स्टडी? तो उसमें क्या समंदर में बैठ के केस डिस्कस करते हैं क्या, या क्या बताना चाहते हो आप? इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये दिखने में भले ही अच्छा लग रहा है पर रिलीवेंस तो होना चाहिए ना, कि जो आप बोल रहे हो जो आप दिखा रहे हो उसमें कुछ रिलीवेंस तो होना चाहिए। देखिए और एक पोएटिक फॉर्म्स एंड जेनर्स, अब टॉपिक ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ओके, तो उसको लेके कोई पोएट रेंडर कर रहा है, ये बहुत बेहतर गया होता ना इसके साथ। पर आप ये चटाई दिखा रहे हो, ये कुछ जचता नहीं है इसके साथ, टॉपिक के साथ। और ये पता चलता है कि आपने मेहनत नहीं की है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है और आप देख रहे हो यहाँ पे डब्बे डब्बे डब्बे, जिसका मार्केटिंग के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। अनगिनत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे ऐसे रियल लाइफ में। यहाँ से आगे तो मुझे डर है कि आप ये सब सुन रहे हो समझ रहे हो तो हो सकता है आने वाले प्रेजेंटेशन में आप ये सब गौर से देखना शुरू करो। तो प्लीज डोंट ब्लेम मी। मुझे जो समझा है पावर पॉइंट को लेके जस्ट वो मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कुछ टॉपिक है और उससे रिलेटेड कोई भी चीज दिख नहीं रहा, ना ही ह्यूमन दिख रहा है, ना ही रिसोर्स दिख रहा है, ना ही मैनेजमेंट दिख रहा है, ना ही फंक्शन दिख रहा है, ना ही स्ट्रेटेजी दिख रही है। और ये स्लाइड बनी हुई है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है टॉपिक के साथ। एनोवा, ये टॉपिक है 1.5 घंटे के प्रेजेंटेशन का और दिखा क्या रहे तो एक फ्रेंडशिप बैंड। एनोवा ऐसा होता के साथ में डील करता हूँ। उसकी फर्स्ट स्लाइड्स में आपके साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लिटरेचर रिव्यू एक टॉपिक में पढ़ाता हूँ, 3 घंटे का मेरा सेशन होता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि रिलीवेंस है थोड़ा सा। लिटरेचर रिव्यू ये लाइब्रेरी रिसर्च से रिलेटेड लाइब्रेरी सर्वे को लेके एक एक्टिविटी होती है, और अगर मैं पूरी की पूरी जंबो साइज में लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ ना तो इट गोज वेल विथ द थीम, देखने में अच्छा लगता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी टॉपिक में डील करता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन। तो मैं दोनों चीजें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हार्ट भी है और ब्रेन भी है। दिखने में बेटर लगता है, रिलीवेंट लगता है। और कुछ आप देख सकते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, ये एक द टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। देन क्वेश्चनरी डिजाइनिंग, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इज अबाउट टिक मार्किंग द रिस्पॉन्सेस, जो मैंने दिखा दिए यहाँ पे। अभी बात करते हैं बैड वर्सेस गुड स्लाइड की। पहले मेरी कुछ एग्जांपल्स कि जब 2007 में मैंने जिंदगी का पहला बड़े लेवल का गेस्ट लेक्चर दिया था रिसर्च डिजाइन को लेके, तो मेरा टेम्पलेट यही था, वो नीला पट्टा, क्योंकि 2007 में ये बहुत ही नई चीज थी, मैं फिर से बता रहा हूँ। और अभी जब मैं करता हूँ तो मेरी स्लाइड्स कुछ ऐसी दिखती है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च पे भी मैं बात करता हूँ, तो पहले मेरी स्लाइड ऐसी दिखती थी, आज ये ऐसी दिख रही है। दिख ही रहा है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च लेबोरेटरी दिख रही है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, पर ये एक स्लाइड मैंने कहीं देखी थी और उसको मैंने घर आके बना के देखा। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, फार्म भी दिख रहा है, प्रैक्टिसेस भी दिख रही है, फार्मर भी दिख रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इंडिया भी दिख रहा है।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये पहले मैं बनाता था इस तरीके से, आज ऐसा बना रहा हूँ। चैलेंजेस फॉर द यूथ टुडे, ये एक मेरे स्टूडेंट ने स्लाइड बनाई थी। अभी ये क्या तितलियों को पकड़ना यूथ का चैलेंज है क्या, यही तो बात हो जाती है। तो इसको फिर मैंने उसको बना के दिया था, चैलेंजेस टू द यूथ इन इंडिया, स्ट्रेस बोलो, या फिर 3-4 स्लाइड मैंने उसको बना के दी थी मेरे स्टूडेंट को। चैलेंजेस टू यूथ इन इंडिया, एग्जाम का प्रेशर, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी के प्रॉब्लम, ये शायद थोड़े से बेटर जाते हैं वो थीम के साथ। डिप्रेशन, वी आर ऑन टिप नंबर 4 नाउ। सर थोडा बफरिंग टाइम येतो आहे. टिप नंबर 4 ची स्लाइड यायची आहे अजून. क्या होता है सब? सर ते स्लाइड्स हेवी असतील ना, तर आय थिंक त्यामुळे वगैरे असेल. अवॉइड अच्छा, हेडिंग maybe. अँड सब हेडिंग आलं आहे आता. अच्छा, हाँ, मी पुन्हा एकदा. हो, एकदा स्लाइड शो करून घ्या सर. नाही मॅडम आता दिसत आहे दिसतंय टिप मॅडम? नंबर 4. टिप 4 दिसतंय का आता? हो अं, दिसत स- आहे. Yes, sir. Yes, Okay. yes, it is right. Tip 4. ओके, चलिए टिप 4 की बात करते हैं। टिप 4 में मैसेज ये है कि ट्राई टू अवॉइड हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर्मेट। देखिए, पावर पॉइंट में जब प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं हम लोग, तब एमएस पावर पॉइंट हम लोगों को बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग देता है कि ऊपर में आप हेडिंग लिखेंगे और नीचे में उसके कंटेंट लिखेंगे। ये देखिए, ये फॉर्मेट हमको एमएस पावर पॉइंट ऑफर करता है। आप पहली स्लाइड पे जहाँ पे टाइटल लिखेंगे और आपका नाम, वो छोड़ने के बाद दूसरी स्लाइड और उसके बाद जितनी भी स्लाइड आप कंट्रोल एम से, हम लोग जनरली नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल एम ये फंक्शन है जिससे हम लोग नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं। तो जब हर बार कंट्रोल एम करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट आएगा। ऊपर में हेडिंग रहेगा और उसके नीचे वो बोलता है कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में ऐसे एक एक पॉइंट आ जाएंगे। जैसे ही आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा बुलेट आ जाता है। तो मेरा मैसेज ही यही है कि आपको अगर 4 लोगों से बेटर स्लाइड्स बनानी है तो ये फॉर्मेट वी शुड डू अवे विथ। आपने अभी तक मेरी कम से कम स्लो स्लाइड्स देखी है। हाँ, शायद सुन के ताज्जुब लगेगा आपको, पर आपने अभी तक मेरी 100 स्लाइड्स देख ली हैं और पूरी 100 स्लाइड में आपने कभी भी ये फॉर्मेट नहीं देखा होगा कि मैंने ऊपर कुछ हेडिंग लिखा है या नीचे उसके कुछ कंटेंट्स लिखे या सब पॉइंट्स लिखे हैं। और स्लाइड्स बेहतर तब होती है जब हम लोग ये फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात, कि आपको डेफिनेशन बताती हैं तो आप डेफिनेशन कौन सी टर्म की, तो उसको बोल्ड कर रहे हैं और उसके बाद उसकी डेफिनेशन गूगल से कॉपी पेस्ट। ये हो गई ऑर्डिनरी स्लाइड। और ऐसे स्लाइड जनरली हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन में। ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स है। आप जैसे देख रहे हो, डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यहाँ पे बोल्ड लेटर में हेडिंग दिया है, उसके नीचे हेडिंग, यहाँ पे डेफिनेशन दी है। तो जनरली ऑर्डिनरी स्लाइड का लुक ऐसा होता है। आप देखेंगे ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स है। हाँ? तो मेरा पहला मैसेज ये है कि हेडिंग सब हेडिंग यूज नहीं करेंगे। दूसरा है इसी पर्टिकुलर टिप में, वो है सब आइटम्स हम लोग यूज नहीं करेंगे। यानी क्या, जैसे आपको एमएस पावर पॉइंट जो ऑफर करता है ऊपर हेडिंग, एमएस ऑफिस जो हमको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है ऊपर हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आते हैं और कुछ लोग जिसको आइटम कहते हैं, आइटम 1, और उसके अंदर फिर ये सब बुलेट पॉइंट्स। ये अगर यूज करोगे स्लाइड का लुक जो है वो मार खा जाता है। ये पैटर्न जो है ये स्लाइड में यूज नहीं करना चाहिए, जिससे स्लाइड का लुक मार खा जाता है और कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लोड स्लाइड पे बहुत ज्यादा आता है। मेरी स्लाइड्स ऑब्जर्व करते रहिए, आपको ये हेवीली लोडेड स्लाइड्स कभी नहीं दिखेगी। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो सब आइटम्स में बोल रहा था इस तरीके से। ये आइटम 1, उसके अंडर सब आइटम, ये फॉर्मेट कभी भी यूज नहीं करना चाहिए पावरपॉइंट की स्लाइड्स में। आप देख रहे हैं ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स है, मैंने ये स्लाइड्स नहीं बनाई है। आप देख सकते हो बुलेट भी है, नंबरिंग भी है और सब पॉइंट्स भी है, ए बी। ये स्लाइड्स अनप्रोफेशनल स्लाइड्स में जाती है। हम लोग जा रहे हैं टिप नंबर 5 में। टिप नंबर 5 है ट्राई टू मेक योर स्लाइड्स रीडेबल, अलाउ योर स्लाइड्स टू ब्रेथ। यानी क्या, आपकी स्लाइड्स को रीडेबल करने की कोशिश करिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ऑडियंस आपके
प्रेजेंटेशन से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो यॉर्निंग करना शुरू कर देता है, और जब भी आपका ऑडियंस यॉर्निंग करे तो समझ लीजिएगा वो बोर हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, और वो वेट कर रहा है कि प्रेजेंटेशन कब खत्म होगा ना। ये देख रहे हैं आप, खास करके जो फिजिकल सेटअप में कॉन्फ्रेंसेस होते थे उसमें पोस्ट लंच सेशन में शायद आपको ये ऐसा सीन बहुत बार देखा होगा कि लोग लिटरली सो जाते हैं, तो उनको जगा के रखना ये सबसे बड़ा काम होता है प्रेजेंटर का। सो हाउ टू अचीव दिस, ये होने का कारण क्या है? स्लाइड्स जब ऐसे दिखती है, स्लाइड्स जब ऐसे दिखती है ना, तो आपका ऑडियंस सोना और बोर होना शुरू हो जाता है। सो ये ना पावर पॉइंट की स्लाइड्स है, थोड़ा सा इसमें इसको अगर डिकोड करते हैं, इसमें 3 शब्द हैं, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन। तीन शब्द हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 3 शब्दों को हम लोग इसको पीपीटी कहते हैं, तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट पावर इज कनेक्टिंग, इट इज अबाउट सब्सटेंस, यानी कंटेंट की बात हो रही है कि योर प्रेजेंटेशन शुड बी कंटेंट रिच एंड दिस इज द prerequisite to make your presentation effective. Point means it should be free of verbose. It should be free of verbose. Verbose का मतलब है नॉन इसेंशियल आइटम्स। नॉन इसेंशियल आइटम्स यानी क्या? आपकी स्लाइड्स रीडेबल होनी चाहिए, ये टू द पॉइंट कंटेंट उसमें होने चाहिए। और प्रेजेंटेशन इज अबाउट द विजुअल्स। ये मतलब है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का कि व्हाट एवर कंटेंट you wish to impart, you may take the help of visuals. अगर सिर्फ कंटेंट ही बताने हैं तो फिर स्पीच देना ही बेटर है ना, उसमें पीपीटी की क्या जरूरत है, स्लाइड्स की क्या जरूरत है? स्लाइड्स फिर तो एक प्रेजेंटर के स्लाइड्स में कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है, टेक्स्ट बहुत ज्यादा डाल के रखा है, तो ऑब्वियसली उसका एक ही मतलब निकलता है कि शायद तैयारी कम पड़ गई है, जिसकी वजह से हर एक चीज लिख के लाया है बंदा। गेटिंग मी? ऐसा ऑडियंस मानती है कि अगर कुछ भूल गए तो वहीं पे देख के पढ़ के टाइम निकाल देंगे, ऐसा मैसेज उसमें से जाता है। तो इसलिए टू द योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन शुड बी टू द पॉइंट, कि जो आपको बताना है बस उतनी ही चीज आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे होनी चाहिए, और जो भी आप बताना चाहते हो उसको कॉम्प्लीमेंट करिए इमेजेस के साथ, पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ, इवन वीडियोस के साथ। और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब ही है इट इज प्रेजेंटेशन। देखिए 2 प्रकार है, एक है भाषण जिसको स्पीच कहा जाता है, और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। स्पीच और प्रेजेंटेशन में फर्क है। भाषण जो है उसमें विजुअल्स वगैरह जनरली होते नहीं है, उसमें प्रोजेक्टर्स यूज नहीं होते, बस माइक दे दिया है, पोडियम दे दिया है और बंदा खड़ा है और बोल रहा है। वो और प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। प्रेजेंटेशन में आपको अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आप कहना चाहते हो वो आप दिखा भी सकते हो, और उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। और अगर आप स्पीच और प्रेजेंटेशन ये दोनों को मिक्स करके तीसरी चीज उभार के लेके आ रहे हो तो ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगी। दोनों चीजें अलग है, डोंट ट्राई टू मिक्स बोथ द थिंग्स टुगेदर। देखिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स में अगर ये इतना सारा टेक्स्ट है तो इसको स्लाइड नहीं कहते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। पावर पॉइंट की स्लाइड में टू द पॉइंट बातें लिखी जाती है। आज आपने मेरी देख ली ना, 100-125 स्लाइड्स आपने देख ली है। देख रहे हो ना मेरे स्लाइड में कितना आता है? हार्डली 1 2 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, 1 लाइन 2 लाइन, उससे ऊपर होता ही नहीं है। जो भी होता है वो तो इमेजेस काम कर लेती है। दैट इज व्हाट द पावर पॉइंट स्लाइड्स आर। और ये जो है आपकी स्लाइड पे अभी जो दिख रहा है ये मेरी स्लाइड नहीं है, ये तो मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ आपको। ये स्लाइड में टेक्स्ट हावी हो चुका है, गेटिंग मी? और इसको स्लाइड नहीं कहता है, इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं, हम लोग तो कंटेंट और विजुअल्स पे फोकस करते हैं ना। ये देखिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है ये सब, ये स्लाइड्स कह ही नहीं सकते इसको कि ये स्लाइड्स है। एक इंपॉर्टेंट मैसेज मेरी तरफ से ये है कि आपका ऑडियंस आपको सुनने के लिए आता है, और हमने जो लिख के लाया है वो पढ़ने के लिए नहीं आता है। तो आपको आपको लगता है कि आपके ऑडियंस ने आपने जो लिख के लाया है वो पढ़ना चाहिए, तो वो जितना कम लिख के लाओगे ना स्लाइड में वो नेचुरली पढ़ा जाएगा, एफर्टलेसली वो पढ़ा जाता है। जैसे अभी जो स्लाइड आप देख रहे हो
क्या आपको कोई कष्ट लेने पड़े क्या कि मैंने स्लाइड पे क्या लिख के लाया? ये तो नेचुरली जब सामने आया तो आपने पढ़ ही लिया ना, बिना एफर्ट के। ये बात होती है पॉइंट की स्लाइड्स में, जब आप कंटेंट टू द पॉइंट डालते हो। इसको लेके जो गाय कावासाकी की मैं उल्लेख कर रहा था, उन्होंने ये कुछ गाइडलाइंस दी है। उन्होंने कहा है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस स्लाइड्स पे कभी नहीं लिखते हैं, और आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड में 5 लाइन से ऊपर एक स्लाइड पे आने नहीं चाहिए। ये मेरे रूल्स नहीं है, ये रूल बने हैं 2005 में, गाय कावासाकी। आप थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं, जितने भी रूल्स उन्होंने लिखे हैं आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ही आप PowerPoint प्रेजेंटेशन रूल बाय गाय कावासाकी ऐसा कमांड दे दीजिए गूगल में, तो आपके सामने ये रूल्स आ जाएंगे। पर सब उससे भी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये रूल्स 2005 में बने और ये 2010-11 तक खत्म भी हो गए हैं क्योंकि उसका रिलीवेंस निकल चुका था। और आज 2021 में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 2005 में कोई रूल्स बने थे जो 2010 2011 में खत्म भी हो गए पर आज भी हम लोग, बहुत सारे लोग, हम लोग प्रेजेंटेशन बना भी रहे, पर ये रूल्स हमको मालूम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और उसका स्वाभाविक कारण ये है, दोष हमारा नहीं है। ये कोई डिसिप्लिन है जिसका ट्रेनिंग लिया जा सकता है। यही चीज शायद हम लोगों को मालूम नहीं। अगर ट्रेनिंग लेने की इच्छा भी रही तो पढ़ाने वाले लोग कहाँ हैं? हार्डली नागपुर में 1 या 2 लोग हैं जो ये चीज पे बात करते हैं, उसमें से एक आपके सामने बात कर रहा है। Getting me? इसके वर्कशॉप की तादाद भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। पिछले कुछ सालों में जैसे लोग मुझे सुनते आ रहे हैं अभी, तो उनको पता चला है कि ये एक चीज है जो सीखी जा सकती है। मैंने वर्कशॉप्स लिए हैं, 50 एक वर्कशॉप्स तो मेरे इसके ऊपर हो चुके हैं। नागपुर और अराउंड विदर्भ में खास करके मैं काम करता हूँ। अवेयरनेस आ रहा है, पर ये चीज सीखी जा सकती है। दैट इज द मैसेज। देखिए, गाय कावासाकी का कहना ये है कि लॉन्ग सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स में स्लाइड्स में ना लिखते हुए उसको आप फ्रेजेस में कन्वर्ट कर दीजिए। और फ्रेजेस में आपको ही मालूम है कि पंक्चुएशन मार्क्स फ्रेजेस में जनरली कंजर्वेटिवली यूज होते हैं, कि फुल स्टॉप जितने कम यूज करोगे उतना बेटर। उसमें बाकी के पंक्चुएशन मार्क्स जितने कम रहेंगे, जितना टेक्स्ट कम रहेगा उतने पंक्चुएशन मार्क्स कम, और जितने पंक्चुएशन मार्क्स कम आएंगे उतना पॉइंट की स्लाइड बेटर दिखती है। ये देखिए, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि प्लानिंग को लेके बताने की कोशिश हो रही है। फिर से ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। प्लानिंग ये हेडिंग है, और उसको लेके कंटेंट ये बंदा शायद नेट से लेके आया होगा, जो कोई भी होगा। उसको बताना क्या है? तो प्लानिंग इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैसेज है, और ये उसको लेके एलैबोरेशन है पूरा का पूरा। मैसेज क्या है? इतना सारा टेक्स्ट ना डालते हुए आप इसको एक की मैसेज में कन्वर्ट कर देंगे, और सिर्फ उतनी ही चीज स्लाइड पे आ जाएगी। यानी वही स्लाइड ऐसी बन सकती है। प्लानिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, दैट्स इट, दैट्स ऑल। इसको स्लाइड कहते हैं और इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये फर्क है। और अगर आप इस तरीके से स्लाइड्स बनाओगे ना, ये देखने की इच्छा होती है, ये चीज ऑटोमेटिकली पढ़ी जाती है। और एज ए प्रेजेंटर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंटेंट। दिस इज व्हाट इन रियल सेंस प्रेजेंटेशन इज। और जो कोई भी बंदा वहां पे जो भी लिखा है वो सिर्फ पढ़ के बता रहा है, उसको सुनने की इच्छा होगी क्या? नो वे। उससे पता चलता है कि कच्चा खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है, प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज की कमतरता है। ये सब मैसेजेस उससे पता चलते हैं। Getting me? अगर आपको एज ए बेटर प्रेजेंटर, एक कन्विंसिंग प्रेजेंटर करके उभर के आना है, तो ऑब्वियसली स्लाइड्स पे काम तो करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ साथ उस टॉपिक पे जितना बेटर कमांड होगा उतना स्लाइड पे कम टेक्स्ट आएगा। जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो तो उसके ऊपर मैं एक लाइन दिखाता हूँ और मालूम नहीं कितनी सारी लाइंस बात करता हूँ। दिस इज व्हाट योर प्रेजेंटेशन अ बिट इफेक्टिव वन। लगता है ना कि एक कोई तगड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी बात कर रहा है। आपके ऑडियंस को ये मैसेज सब्टली जाना चाहिए कि आप इस क्षेत्र के सबसे बेहतर है, और ये बताने का तरीका आपकी स्लाइड कर सकती है। और वो भी अनसेड मैसेजेस है ये सब। गाय कावासाकी सर का और एक मैसेज, उन्होंने ये कहा है कि इफ यू आर गिविंग ए प्रेजेंटेशन लाइव, कीप योर स्लाइड्स 15 वर्ड्स और लेस। एक स्लाइड पे 15 शब्द से ज्यादा मत आने दीजिए, तो स्लाइड्स बेहतर बन जाती है। 15 शब्द, हाँ, बहुत ही कंजर्वेटिव। Only 15 words should be there. Less than 15 words should be there on one particular PowerPoint slide. और उससे भी बड़ा और लाउड मैसेज कि आपने जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो ऑडियंस को 3 सेकंड के अंदर पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए।
वो स्लाइड्स को हम लोग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे अभी ये स्लाइड का एग्जांपल ले लीजिए ना, ये स्लाइड में आपने पढ़ा क्या, तो 3 सेकंड मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया ना आपको कि 3 सेकंड यानी क्या है। 3 सेकंड में आप जो भी बताना चाहते हो वो ऑडियंस को पता चल जाना चाहिए, एक स्लाइड का मैसेज। दिस इज द मैसेज फ्रॉम गाय कावासाकी सर। You should do away with blah 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 thing and you should achieve this wow effect. एक एनालॉजी ये भी जाती है कि आपकी पावरपॉइंट की स्लाइड्स याहू की होम पेज की तरह नहीं होनी चाहिए। ये याहू का होम पेज है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ये याहू का होम पेज है, और याहू पे जाते क्यों है, तो सर्च करने के लिए या फिर मेल चेक करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो ढूंढना ही पड़ता है कि कहाँ पे जाके सर्च करूँ, कि सर्च विंडो को ही प्रोमिनेंट जगह नहीं दी, इतना सारा टेक्स्ट है। और मेरा मैसेज तो ये है कि याहू की तरह स्लाइड्स ना बनाते हुए होम पेज ऑफ गूगल की तरह बनाइए। गूगल को मालूम है कि गूगल पे जो कोई भी जाएगा वो सर्च करने में इंटरेस्टेड है, तो गूगल पे दिखा दी है ना, ये गूगल है और ये सर्च विंडो है, करिए टाइप और एंटर कर दीजिए, आप जिस चीज के लिए यहाँ आए हो वो हो गया है। बस वही चीज हम लोगों को पावरपॉइंट की स्लाइड्स के थ्रू करनी है। ऑडियंस को क्या मैसेज देना है, मेक इट लाउड एंड क्लियर, दैट्स इट, दैट्स ऑल, एंड टू द पॉइंट, वेरी क्रिस्प मैसेजेस, दैट्स इट, दैट्स ऑल। नो वर्बस शुड बी देयर, नो एलैबोरेटिव सेंटेंसेस मस्ट बी देयर ऑन पावरपॉइंट स्लाइड्स। जितनी ज्यादा एम्प्टीनेस होगा स्लाइड्स पे, वो स्लाइड का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। जितनी खाली स्लाइड रखोगे ना, जितने कम वर्ड रखोगे, वो स्लाइड का लुक उतना बेहतर आ जाता है, इफेक्टिव हो जाते हैं, वो मैसेजेस का इफेक्टिवनेस ही क्लियर हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो स्लाइड ज्यादा से ज्यादा खाली है, और जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ने के लिए एफर्ट ही नहीं लेने पड़ रहा है, और एकदम सोफिस्टिकेटेड लुक इसको आ रहा है। एज यू कैन सी, देखते रहिए, अच्छा लगेगा देखने के लिए। ट्रिक क्या की है फार्मास्यूटिकल रिसर्च, उसके लिए एक सिंपल सी इमेज, इसका जो कलर यहाँ पे है वही कलर टेक्स्ट में दे दिया, स्लाइड का लुक देखिए आप। वो ज्यादा मेहनत नहीं की है, ये स्लाइड मैंने सिर्फ 2 मिनट में बनाई है, पर ये एक बेहतरीन स्लाइड में जाती है, देखने में अच्छा लगता है। ये एक स्लाइड मैंने थोड़ी देर पहले शेयर की थी आपके साथ, डिस्कार्ड स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स। देखिए एम्प्टीनेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जितना खाली स्पेस होगा उतना स्लाइड का लुक बेटर आ जाता है, लगता है जैसे प्रोफेशनल सोफिस्टिकेटेड मंजा हुआ आदमी प्रेजेंटेशन कर रहा है। और इसमें कोई टेक्नोलॉजी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिंपल से तरीके बता रहा हूँ कि एस्थेटिकली उसको फेसलिफ्ट करके दे सकते हैं। ये स्लाइड मैंने खुद बनाई है, हाँ ये बहुत पहले मैंने बनाई थी। ये बनाने के लिए मुझे 12-13 मिनट लग गए थे। स्पोर्ट्स एंड इसेंशियल एक्टिविटी को लेके मेरा कोई एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन करने वाला था, वो कुछ तो भद्दा सा लेके बना के आया था, मैंने उसको, क्योंकि कंपटीशन थी वो, तो उसमें उसको प्रेजेंटेशन करना था, तो मैंने उसको ये स्लाइड बना के दी थी, और वो अप्रिशिएट भी किए गए थे। एडवर्टाइजमेंट्स, कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, और कोका कोला शायद ये चीज को समझता है कि जितना ज्यादा एम्प्टीनेस होगा उतना मैसेज लाउड और क्लियर हो जाता है। कोका कोला न्यूज़पेपर में फुल पेज, यानी फ्रंट पेज ही आप बोलिए, फुल पेज को हायर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ न्यूज़पेपर का नाम होता है ऊपर, और नीचे पूरी खाली जगह, और उसमें सिर्फ आपको ये बॉटल दिखेगी यहाँ पे, दैट्स इट, और यहाँ पे मैसेज, बाकी ये पूरी खाली जगह है। और उनको मालूम है कि खाली जगह के पैसे पे करने होते हैं, और ये लाखों में देने होते हैं, फिर भी वो खाली जगह के पैसे पे कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज बहुत ही क्लियर है। जितना ज्यादा एम्प्टीनेस होगा, जो आप दिखा रहे हो वो क्लियरली दिख जाता है, और वो पढ़ा जाता है, मैसेज जो है एप्ट सेंस में आपके ऑडियंस तक पहुंच जाता है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ टाइम, ये जब मैं 5-5 7-7 दिन के वर्कशॉप्स लेता हूँ, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। वॉक्स वैगन का एक एग्जाम्पल है, पर फॉर द टाइम बिंग मैं वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। टिप नंबर 6 में जाएंगे। देखिए पावर पॉइंट में जब हम लोग जाते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, ये हमारा फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे हम सेंटर में टाइटल और नीचे हमारा नाम या फिर सब टाइटल देते हैं। दूसरी स्लाइड, यहाँ पे जब कंट्रोल एम करेंगे तो दूसरी स्लाइड पे जब आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे पहुंचते हम लोग ये स्लाइड पे, और यहाँ पे ये हेडिंग होगा, और यहाँ पे फिर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही ऐसा है इसका कि जिसमें बुलेटिंग ही आती है। आप कुछ भी टाइप करिए, एंटर करेंगे आप, तो ये बुलेट अपने आप आ जाते हैं। तो मेरा मैसेज ही ये है कि ट्राई टू अवॉइड बुलेटिंग ऑन योर स्लाइड्स। 4 लोग जो करते हैं वो करके अलग कुछ करना है, तो 4 लोग प्रेजेंटेशन में बुलेट यूज कर रहे हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ कि बुलेट मत यूज करिए, और ये मेरी तरफ से मैसेज
नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता है। देखिए बुलेट यूज क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। एज ए प्रेजेंटर आपने हर एक बुलेट में कोई ना कोई एक मैसेज दिया हुआ है, ओके। अभी एज ए प्रेजेंटर आप सबसे पहले तो ये मैसेज को क्लियर करेंगे ना, ये जो भी लिखा है वो आप समझाने की कोशिश करेंगे, फिर इस पे जाएंगे और एक एक करके आप ये सब एक्सप्लेन करोगे आपके ऑडियंस को। और यकीन मानिए आपके ऑडियंस के पास जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उस वक्त उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होता है। आप जो दिखाओगे, जो लिख के लाओगे, आप जो दिखा रहे हो वही देखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, और जो आप लिख के लाए हो वो पढ़ने के अलावा उसके पास चारा नहीं है। तो आज ऑडियंस इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो जब आप पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये बाकी सब पॉइंट वो पढ़ लेता है, और बाकी सब पॉइंट पढ़ के वो मोकड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब तू बात कर, मेरे को मालूम है कि आने वाले 10 मिनट में तू क्या बात करने वाला है, तू कर, मेरे को थोड़ा सा घूम के आता हूँ मैं माइंड से, दूसरा कुछ काम निपट लेता हूँ, यू नो। सो नेवर अलाउ योर ऑडियंस टू रीड थ्रू ऑल योर टेक्स्ट व्हाट यू विश टू डिस्कस इन टाइम टू कम। सीक्रेसी रखिए, मेंटेन, थोड़ा सा सीक्रेट मेंटेन करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या आने वाला है ये पता ही मत लगने दीजिए उसको। सीक्रेसी रखेंगे तो वो ऑब्वियसली ग्लूड रहेगा एक टाइम पे एक ही पॉइंट। दिस इज द मैसेज फ्रॉम स्टीव जॉब्स, बुलेट्स किल अटेंशन। जितने ज्यादा बुलेट पॉइंट्स उतना ऑडियंस का अटेंशन खत्म होने की संभावना ज्यादा। तो ये मेरा मैसेज नहीं है, स्टीव जॉब ने कहा है, और स्टीव जॉब ने भी उसके प्रेजेंटेशन में कभी भी कोई भी बुलेट पॉइंट यूज नहीं किया है। उसके यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है स्टीव जॉब सर के, आप जरूर देखिए और यू विल अप्रिशिएट दैट कि स्लाइड्स किस तरीके से बनाई है। उनका एक बुक है, मैं शेयर कर ही रहा हूँ। स्टीव जॉब का कहना यह है कि बुलेट्स जो है वो गन के लिए बनी होती है पावर पॉइंट की स्लाइड्स के लिए नहीं। थोड़ा फनी है पर मैं तो कन्विंस हो गया बस। ये किताब की मैं बात कर रहा था, द प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स ऑफ स्टीव जॉब्स। इसने बहुत सारी टिप्स सर ने शेयर की है और कुछ रियल लाइफ इंसिडेंसेस कि वो जब प्रेजेंटेशन की तैयारी करते थे तो वो क्या तैयारी चलती थी, बैक एंड में क्या चलता था, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से, उनके प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने क्या हटके किया है, वो सब किस्से इसमें दिए हैं। मैं बता सकता हूँ पर थोड़ा टाइम कम है, ऑलरेडी 12:20 हुए हैं, 11:30 मुझे खत्म भी करना है, तो मैं चाहते हुए भी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। पर अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली आप यू मे गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने मालूम नहीं कितनी बार ये किताब पढ़ी है, और इसमें से ये किताब में से कुछ पॉइंट्स तो मैं आज के प्रेजेंटेशन में शेयर भी कर रहा हूँ जो टिप्स सर ने शेयर की है, और खास करके अभी जो टिप की बात कर रहा हूँ मैं, अवॉइड यूजिंग बुलेट पॉइंट। तो ये मेरा मैसेज नहीं है, ये सर का ही मैसेज है, स्टीव जॉब्स सर का। सो दिस इज द मैसेज, यू यूज बुलेट पॉइंट्स स्पेरिंगली, यानी जितना कंजर्वेटिवली यूज कर सकते हो करो, क्योंकि कुछ स्लाइड्स में बुलेट आना स्वाभाविक होता है, हर बार तो अवॉइड नहीं कर सकते, पर मैसेज ये है कि हर स्लाइड में बुलेट मत डालिए, जहां बहुत ज्यादा जरूरी है वहीं पे डाल सकते हैं। उसको लेके ये रूल है गाय कावासाकी सर के, उन्होंने कहा है कि लेस देन 6 वर्ड्स लॉन्ग, कि एक बुलेट में कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो इसमें सिर्फ 6 वर्ड्स, उसके ऊपर मत जाने दीजिए, और एक स्लाइड में 3 या फिर 3 से कम बुलेट पॉइंट्स, चौथा नहीं आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गाय कावासाकी सर ने कहा है। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 2005 में आए थे रूल्स, ये खत्म हो चुके हैं 2010-2011 में। पर ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग तो ये पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये रूल क्या बने हुए थे। और आज आप मेरी स्लाइड में देखें, मेरी स्लाइड में तो कहीं पे भी कोई भी बुलेट पॉइंट आपने देखा नहीं होगा, ये तो समझाने के लिए मैंने डाले हैं ना मेरी स्लाइड पे आपको कभी भी कोई भी बुलेट पॉइंट कहीं भी नहीं दिखेगा। मेरी तरफ से मैसेज ये है कि ट्राई टू कन्वर्ट योर पैराग्राफ्स इनटू बुलेट पॉइंट्स फर्स्ट। यानी स्टेजेस है, जब आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स तैयार कर रहे हो तो गूगल से जो पैराग्राफ लेके आ रहे हो ना, आप पैराग्राफ के पैराग्राफ कॉपी ना करते हुए पैराग्राफ को फ्रेज में कन्वर्ट करिए, और हर फ्रेज के लिए एक बुलेट पॉइंट, यानी हर मैसेज के लिए एक बुलेट पॉइंट। और उसके बाद मेरा ये मैसेज है कि हर बुलेट पॉइंट के लिए हर सेपरेट स्लाइड, यानी एक ही स्लाइड पे 4 बुलेट्स ना डालते हुए, यानी 4 मैसेजेस डील ना करते हुए 4 मैसेजेस के लिए 4 स्लाइड्स। बात ये होती है कि सर इससे नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ जाएगी ना, बढ़ने दीजिए ना बढ़ने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। आज का मेरा 90 मिनट का प्रेजेंटेशन है, क्या आप गेस कर सकते हो कि मैं कितनी स्लाइड्स बना के लाया हूँ? प्रिसाइजली 249 स्लाइड्स में यूज कर रहा हूँ।
मुझे ऑनेस्टली बताइए, 1.5 घंटा लगभग हो चुका है मेरा प्रेजेंटेशन शुरू है, क्या आपने मेरी कितनी स्लाइड्स हुई है ये काउंट किया है? नो वे। आपका ध्यान तो मैं क्या बता रहा हूँ उसके ऊपर है ना। हाँ, खास करके अगर मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग है तो फिर शायद आप वो कर भी लेंगे कि कितनी स्लाइड दिखा रहा है यार, गिनना भी शुरू कर देंगे। पर अगर प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है तो फिर कोई वो फंदे में नहीं पड़ता है कि आपने कितनी स्लाइड्स यूज की है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो मैसेज देना है क्या वो ऑडियंस तक पहुंचा है। एक ही मैसेज देने के लिए 4 स्लाइड यूज करो, 40 करो, पर वो मैसेज बहुत ही क्लियर तरीके से ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। वो मैसेज पहुंचाने के लिए आपको लगता है कि एक स्लाइड सफिशिएंट है, ठीक है ना। आपको लगता है कि नहीं, एक स्लाइड से बात नहीं बनेगी, 4 स्लाइड बनानी चाहिए, बना लीजिए, किसने रोका है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि आपको जो टाइम दिया हुआ है क्या उस टाइम में आप वो प्रेजेंटेशन के टॉपिक को खत्म कर रहे हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर ऑफ स्लाइड्स। देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल कि अभी जो मैंने टिप्स दी उसको लेके एनालॉजी है। एडवर्टाइजिंग को लेके टॉपिक है और बंदे ने ये चीज इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके लाई। ये हो गई ऑर्डिनरी स्लाइड। इसमें पूरा लिखा है द डेफिनेशन रिवील्स 4 की फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये अभी लिखने की सही में जरूरत है क्या? नो वे। ये तो नॉन इसेंशियल आइटम है, ये अननेसेसरी लाइन हो गई ना। इसको निकाल देंगे। एज ए प्रेजेंटर आप बताएंगे ना कि एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन में 4 की फीचर्स होते हैं। ये 4 की फीचर्स ये है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 और ये नंबर 4। तो एक ही स्लाइड पे 4 क्यों डाल रहे हो? उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे मैसेज ये है ना कि एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म, यही बताना चाहते हो ना। ये पहली लाइन में आ गया, एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म। ये मैसेज है, इसमें भी एक पर्टिकुलर मैसेज है नॉन पर्सनल वाला। तो ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये क्यों मालूम है? प्रेजेंटर को आपने भी देखा होगा, वो लिख के तो बहुत सारा लाता है, पर वो ये वर्ड टू वर्ड कभी नहीं पढ़ता है। लेकिन ये स्टूडेंट लेवल पे करते होंगे, वो वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं पर वो समझाते नहीं है। और एज ए प्रेजेंटर हम लोग तो सब सीजन्ड है ना, हम लोग तो सीनियर लोग हैं, तो हम लोग ये पढ़ते थोड़ी ना है। और ऑडियंस भी थोड़ी ना पढ़ने वाला ये वर्ड टू वर्ड। फिर बात ये होती है कि ना ही प्रेजेंटर पढ़ रहा और ना ही जिनके लिए बना के लाए वो पढ़ रहा है। तो फिर ये चीज कर क्या रही है यहाँ पे? ये चीज आपके प्रेजेंटेशन को खराब करने का काम कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको निकाल देंगे ना फिर, जो चीज काम की नहीं है, और इसको क्रिस्प मैसेजेस में अभी इसी स्लाइड को 4 स्लाइड पे कन्वर्ट कर देंगे। किस तरीके से? एज यू कैन सी, यही था ना आपका पहला मैसेज, एडवर्टाइजिंग इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ पब्लिसिटी या कम्युनिकेशन। एज ए प्रेजेंटर हम लोग समझा देंगे कि इसका मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल्स देंगे, एनालॉजी देंगे, दिस इज व्हाट अ प्रेजेंटेशन इज। ये दूसरा मैसेज, इस तरीके से 4 स्लाइड्स बना देंगे और आप देख रहे हो देखने में कितनी बेहतर लगती है ना स्लाइड्स। है ना, मैंने किया क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 4 लोग यूज करते हैं वो फॉन्ट मैंने छोड़ दिया, बाकी सब लोग ब्लैक में लिखते हैं, मैंने ग्रे में लिख दिया। बाकी सब लोग ये भी ब्लैक में लिखते हैं, ये भी ब्लैक में लिखते हैं, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। और जो मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, कलर कर दिया, ये स्लाइड का लुक बेहतर आ गया। इट इज सो सिंपल। कोई कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी नहीं है इसके लिए, बस एक थोड़ा सा हम लोगों को एस्थेटिकली इसको अपलिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, एज यू कैन सी। सो मैसेज ओवर हियर इज देयर शुड बी वन बिग मैसेज इन वन पर्टिकुलर स्लाइड। एक स्लाइड पे एक ही मैसेज की बात होगी, एक स्लाइड पे 2 3 4 मैसेजेस नहीं देंगे। So this is all about my today's presentation. I have shared 6 tips with you. It is got 12:30 now. Now I am opening the session for your queries if there are any. Means I will be very happy to take all your queries. Over to you, Preeti ma'am. Yes, sir. Friends, if you have any query, you can ask. Sir, what about other tips? Yes. Yeah. Gaikwad sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. सर कल हमें बताया गया कि जो टेम्पलेट्स है वो अगर लेते हैं या फिर जो गूगल में कोई इमेजेस है, मैप्स है, वॉट एवर इट में बी, वो लिए तो उसे जो कॉपीराइट है वो नहीं लगता है। आपने जो अभी कहा कि स्लाइड बनाते वक्त वो ना लेके बाहर के लो, तो फिर उसके लिए सर वो कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा? देखिए सर, इसमें जहां तक मेरा नॉलेज है ये एकेडमिक पर्पस के लिए, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो कॉपीराइट का नहीं बनता है। पर हाँ, इसका आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो फिर कॉपीराइट का ये लागू होता है इसमें। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है सर। ओके सर, हम लोग थैंक तो यू। एकेडमिक पर्पस के लिए यूज करते हैं ना ये सब।
एकेडमिक के लिए करते हैं तो सर फिर प्लेगरिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है ना फिर। उसको टेक्निकलिटीज को लेके मुझे नहीं इतना अंडरस्टैंडिंग है सर। और ये एक तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि एकेडमिक पर्पस के लिए और नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं जाती है प्लेगरिज्म में या कॉपीराइट में। ओके सर। तो ये कॉपीराइट और पेटेंटिंग को लेके कोई रिसोर्स पर्सन अगर आता होगा इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में, Yes, तो शायद वो क्लियर कर Gaikwad सकते हैं। sir. Gaikwad sir. Am I audible? Yes. Yeah. There are few sites जैसे Shutterstock हो गया, Pixabay हो गया, ये ऐसे साइट्स है जहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं, दे आर कॉपीराइट फ्री। ठीक है, तो उन इमेजेस को आप अपने स्लाइड्स को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को, जैसे आप अगर कोई रिसर्च का अगर कर रहे होते तो उसमें अपन ने प्लेगरिज्म और कॉपीराइट वाला सेशन रखा रहता, लेकिन देर आर फ्यू वेबसाइट जहाँ से आप इमेजेस वगैरह लेते हैं और उसका सोर्स मेंशन करते हैं नीचे में, तो ये इश्यूज नहीं आते हैं एंड यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन बेटर। Ma'am, can you please Thank you. repeat the Thank you. site name? Shutterstock What you and Shutterstock and Pixabay. These are the two websites. Or yes, I have list of that. I will share with all the participants if they are interested in these particular aspects. Okay? Yes, ma'am, please. Yeah. Please share it. Yes, yes. Any question? मैम रेस्ट ऑफ द टिप्स मुझे सुनना था सर के। Yes, sir. सभी को सुनना था, but sir क्या करेंगे? Shall we continue with the same session or what to do? सेम सेशन Sir? प्लीज Sir, there बी is one कंटिन्यू द सेम सेशन। Okay. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। Okay. Hello? Ashish sir, हाँ मैम। काय करायचं? Sir, I'm having a question. एक मिनट, भावना मैडम, आपका कुछ क्वेश्चन है? Yes, ma'am. पूछिए पूछिए। Sir, while presenting, as you said, that minimum bullet should be there. So many times we use some animations to the presentation. So just like that, we're going to talk and then only the sentence comes. Then after that, the next sentence comes. After that, the next sentence comes. So it is been the correct way to make the audience engage. Okay, I'll address this issue, ma'am. Regarding the usage of animation we can use in three sense. The first one is there is slight transition kind of thing, and we should never use slight transition. It is, distinguishing or it is disturbing. Slight transition I'm talking about. We should never use animation for slight transition. Second one is we can use it for animating the text. Yes, you can use animation functions for animating your text, but very judiciously. In some slides, you may use the text animation. मैं एक मेरा रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने 2008 में एक प्रेजेंटेशन अटेंड किया था। एक फॉरेन डेलीगेट आए थे और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो कॉपीराइट पेटेंटिंग का ही वहाँ पे आईपीआर का एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था आईपीआर पेटेंटिंग कॉपीराइट को लेके ही। तो एज ए पार्टिसिपेंट मैं वो अटेंड कर रहा था और वो लंदन से आए थे, मुझे अभी भी याद है, 2008 की बात है ये। और मैंने आई मस्ट एडमायर दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो बंदे ने कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेके बात की थी। और आपको मालूम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें 3 शब्द हैं। तो उसमें ना एक ही स्लाइड पे ये तीनों शब्दों को इतने बेहतरीन तरीके से एनिमेट किया था। मेरे पास है ये, मैंने भी घर आके करके देखा था, मैंने वो प्रिजर्व भी करके रखा है मेरे वर्कशॉप्स में, वो करके भी दिखाता हूँ। पर इंसिडेंटली अभी मुझे मालूम नहीं वो सेव किया है, ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आई वुड हैव शोन दैट पर्टिकुलर स्लाइड टू यू। पर वो स्लाइड की खासियत ये थी कि वो बंदे ने एक ही स्लाइड में 3 चीजें, जैसे टॉपिक ही वो था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो उसमें पहला वर्ड सप्लाई, पहले ना जब स्लाइड आई तो पूरी वो व्हाइट कैनवास थी। उसके बाद उसके हाथ में पॉइंटर था और वो रिमोट कंट्रोल था जिससे वो स्लाइड चेंज कर रहा था। और वो भी एक ट्रिक है, अभी इतनी सारी इसमें गाइडलाइंस है ना, तो ये भी एक होता है कि कंट्रोल शुड बी इन आवर हैंड। वी शुड नॉट अपॉइंट एनी असिस्टेंट कि वो स्लाइड चेंज करे, पार्ट अपार्ट। वो मैं थोड़ा सा भटक जाऊंगा,
तो मैं जो बात कर रहा हूँ उसके हाथ में वो रिमोट था। 2008 में वो रिमोट होना वो बहुत ही नोवाइस चीज थी, और 2011 से तो मैं यूज कर रहा हूँ ये रिमोट वगैरह। सो पार्ट अपार्ट, पहले जब आया सामने तो पूरा व्हाइट कैनवास था, कि ऐसा लग रहा था कि वो गलती से व्हाइट आ गया है क्या। तो जब उन्होंने प्रेजेंट यानी जब उनका इंट्रोडक्शन वगैरह चल रहा था तो पूरा व्हाइट ही दिख रहा था वो। और उसके बाद फिर उन्होंने जब प्रेजेंटेशन शुरू किया तो वो रिमोट से क्लिक किया तो उस वक्त वहां से पॉपअप हुआ सप्लाई ये वर्ड, और उन्हें सप्लाई यानी क्या ये पूरा समझाया। और हार्डली मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट वो सिर्फ सप्लाई यानी क्या वो बात कर रहे थे विद एग्जाम्पल्स एंड ऑल। उसके बाद उन्होंने उसी स्लाइड में फिर से क्लिक किया तो सप्लाई जो वर्ड है वो वहां से डिसअपियर हुआ, हमारे आंखों के सामने से वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था। और उसी के ठीक बाजू में चेन ये वर्ड पॉपअप हो रहा था सिमिलर एट द सेम टाइम। और फिर उन्होंने चेन के बारे में बात की एक 3-4 मिनट की, चेन यानी क्या। उसके बाद फिर उसी स्लाइड पे उन्होंने क्लिक किया और वो जो वर्ड है चेन वो धीरे धीरे हमारे आंखों के सामने ही डिसअपियर हो रहा था, और ये सब उन्होंने ब्राउन कलर में किया था, मुझे अभी भी याद है। और ये डिसअपियर हुआ और जैसे तीसरा क्लिक किया तो मैनेजमेंट ये वर्ड पॉपअप हुआ एक ही स्लाइड में। और फिर उन्होंने मैनेजमेंट यानी क्या उसके ऊपर बात की, और फिर लास्ट क्लिक किया जब वो मैनेजमेंट वर्ड धीरे धीरे डिसअपियर हुआ। और जब फाइनल क्लिक किया तो तीनों के तीनों शब्द एक साथ उसी स्लाइड पे आए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और उन्होंने उसके ऊपर भी 7-8 मिनट बात की। तो मैंने शायद मेरे जिंदगी का पहला ऐसा प्रेजेंटेशन देखा होगा जो एक ही स्लाइड का था। तो इस तरीके से अगर आप एनिमेशंस यूज कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट। और मैं आपको आज भी पूछा ना कितने प्रेजेंटेशंस याद है, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आपको कितने प्रेजेंटेशंस याद है, तो मैं कहूंगा मुझे तो अनगिनत याद है कि प्रेजेंटेशन कैसे नहीं बनाते उस सेंस पे लेके पर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उस सेंस में मुझे हार्डली 1 या 2 प्रेजेंटेशन जिसका एक मैंने उल्लेख किया कि एक ही स्लाइड में पूरा खेल खत्म। 30 मिनट बंदा बात कर रहा था एक सिर्फ एक स्लाइड में, और सिर्फ वो टेक्स्ट एनिमेशन फंक्शन यूज करके। मुझे बेहतरीन लगा उस वक्त, तो भी 2008 में मेरे लिए ये बहुत नई चीज थी। और ये हो गया टेक्स्ट का एनिमेशन। तीसरा होता है इमेजेस का एनिमेशन या फिर पिक्चर्स, ग्राफ्स, स्मार्ट आर्ट। आज आपने ध्यान दिया होगा मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने एनिमेशंस यूज किए हैं, स्पारिंगली यूज किए हैं। एक मैंने मैसेज दिया था आपको, इफ इट इज योर प्रेजेंटेशन देन इट शुड बी योर टेम्पलेट, उस वक्त मैंने एनिमेशंस यूज किए थे। दूसरा मुझे याद है वो कैट वाला, कि यू शुड डू अवे विथ अगली कैट, तो वो अगली कैट को मैंने डिसअपियर किया है। उसके बाद यू शुड स्ट्राइव ऑन क्यूट प्रेजेंटेशन, तो वो क्यूट जो कैट थी उसको मैंने एनिमेट किया था। यानी क्या एनिमेशन आप यूज कर सकते हो पर जुडिशियसली, और मैसेजेस को एम्पलीफाई करने के लिए। सिर्फ आपको बहुत तामझाम आता है ये दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन में एनिमेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कुछ डायनेमिक चाहिए होता है या फिर कुछ तामझाम चाहिए होता है, उसके लिए एनिमेशन यूज नहीं करने चाहिए। एनिमेशन का यूज करना चाहिए आपके मैसेजेस को एम्पलीफाई करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए। जैसे आप पीएटी का कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, बहुत सारे ग्राफ आपने बनाए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो भी वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन तो उसने कैसे परफॉर्म किया, कि 2010 में उस वेरिएबल को लेके क्या डेटा था, वो अगर आप फिर 11 फिर 12 वो जो लाइन है वो किस तरीके से अप एंड डाउन आ रहे हैं उसको एनिमेट कर रहे हो ना, नथिंग लाइक इट। बार ग्राफ को एनिमेट कर रहे हो बहुत अच्छा लगता है वो, पर इट मेक सेंस ना। सो एनिमेशन यूज करने चाहिए पर जुडिशियसली यूज करनी चाहिए। भावना मैडम, दिस इज माय एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। Yes, sir. Yes. Because sir, many times adding the animation, it may distract the audience from your actual content. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। बहुत बार ना क्या होता है ये डिस्टर्ब करने का, मोमेंटम को रोकने का काम करता है, क्योंकि एनिमेशन अगर धीरे धीरे कोई टेक्स्ट आ रहे हैं तो ना वो प्रेजेंटरी रुक जाता है कि कब ये वर्ड का डांस खत्म हो और कब फिर बात शुरू करे, तब तक ऑडियंस दूसरा कुछ करना शुरू कर देता है। ये ना जब नया था ना तब ठीक लगता था, अभी ना ये इसमें इमेच्योरिटी छलकती है कि अननेसेसरीली एनिमेशन करना, ये मैच्योरिटी नहीं छलकती है उसमें। तो मेरा मैसेज तो बहुत ही लाउड और क्लियर है एनिमेशन को लेके, जुडिशियसली और मैसेजेस को एम्पलीफाई करने के लिए एनिमेशन जरूर यूज करनी चाहिए पर स्पारिंगली। Yes, sir. Thank you. आशिष सर काय करायचं, हाही टॉपिक कंटिन्यू करायचं?
You take a call, ma'am. I'm ready for both. I can continue with this presentation as well. Otherwise, पार्टिसिपेंट्स I में can आप take ही से पूछती हूँ, आपको ये टॉपिक कंटिन्यू चाहिए कि रिसर्च एक्चुअली मैडम रिसर्च सॉफ्टवेयर का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैडम। मैडम इसे टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। I was supposed to talk on the Sir. softwares used in research. Sir, Yes, sir, sir. Guide. you can take 15 minutes for this rest of the tips and then research one. Give some break and after that research one. ठीक है सर, वैसा करते हैं। सर वैसा करते हैं, पर उसमें गायकवाड़ सर उसमें होगा क्या, दोनों टॉपिक के साथ ठीक से जस्टिस नहीं होता है जस्टिस नहीं सर हो फिर। Okay. Sir, I think it will be better to ठीक है, complete all आपने the सजेशन tips. दिया, ये मेरे दिमाग में भी आया था कि पहला आधा घंटा मैं ये बात करता हूँ और बाद में फिर 1 घंटा उधर की बात करेंगे, ये मेरे दिमाग में भी आया था, बट आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल। सर ऐसा पहली बार हुआ कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको भी वो पूरे स्लाइड्स दिखाए। मेरे ख्याल से 200 स्लाइड्स देख लिए हमने अभी तक, तो अभी 49 भी देखना चाह रहे हैं। सर आपण ऐसा करते हैं, सर आपण हाच टॉपिक कंटिन्यू करूया। पहिले मी आपण 5-10 मिनिटचं yes. ब्रेक घेऊ। We will take break of 5 to 10 minutes and then we will continue with the same topic. For second topic, that is of research software, I will plan in the next week. Yes, ma'am. Yes. If you It will be people are better. yes, That will be better, ma'am. Yes, ma'am, it will be better. yes, क्योंकि आपको सारी चीजें आनी भी चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों को वो वाले सॉफ्टवेयर्स भी सुनने हैं, तो सबका ही फायदा होना चाहिए। तर आशिष सर आपण 5-10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ इथे आणि सेम ठीक आहे, टॉपिक कंटिन्यू करूया आणि नेक्स्ट वीक मध्ये मग मी आपण बोलूया तसं प्लान करते हैं। ठीक है ना मैडम। फ्रेंड्स मीटिंग को लीव मत करिए, जस्ट 5 मिनट्स में आप लोग रिफ्रेश होके वापस आ जाइए, सो दैट अपने को उतना टाइम मिलेगा आगे के सेशन के लिए। ओके Okay, madam. यस Okay, madam. डोंट लीव द मीटिंग।